Okay, Assalamualaikum. We are live. Please, can someone tell me if my voice is clear, my video is clear? Because I just want to make sure the net is working. I am ready with two devices, like as a backup. So I hope it goes smoothly. But again, the electricity issue, the light might go. There are things that are out of my control, so I can't promise that, but I'll try. And hopefully कि ये smoothly जाएगा. I'm just waiting for a few of the members to join in so we can start the session. Um, Please, those who have joined in, if you can hear me and see me clearly, can you just message so I know that everything is going smooth and you guys are able to hear me properly? Because of the net, I am very conscious now. Anyways, so before I start, there are a few things before I get Amara on the screen and start talking about the topic today. Uh, Let me just start with that I am in a very um, different mood today. I don't know how to describe that. I just feel like that since morning I had to deal with few people who gave me that, like, have given me that feeling when I start, and I was talking about this to my panelists also, that how I felt when I was starting this page. And whenever you start something and you are about to do something, ज्यादातर तो आपको responsives नेगेटिव ही मिलते हैं, that क्या जरूरत है, इतना टाइम किसके पास है, इससे क्या फायदा मिल रहा है तुमको, पैसे लोगी कि नहीं, थिंग्स लाइक दैट. एंड मेरा हमेशा से ये सोच है कि जब आपके पास कुछ है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो कोई हुनर हो, वो आपके अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए होता है, जो भी उससे फायदा उठा सके. ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि पीपल do make financial benefit out of it, which is absolutely fine. Not making financial benefit out of it is my decision, is my panelist decision, and I feel कि ये बहुत and generously my panelist agreed to it. तो जब मुझे ये पेज स्टार्ट करते हुए जैसा मुझे एक बैकलैश थोड़ा बहुत मिला था कि क्या चलेगा, कैसे चलेगा, अगेन पॉपुलैरिटी, फेम, मनी वाज नेवर द टारगेट, हैज नेवर बीन द टारगेट. और ये मेरे मेंबर्स, ये मेरे दोस्त, पैनलिस्ट सब जानते हैं. Target was so that people and families can benefit as much as they can through us, through me, through our knowledge, through our experience. Because मुझे ये लगता है कि ये मेहनत जो है ना, खामोशी से करनी चाहिए, ताकि जो कामयाबी हो वो बहुत शोर मचा के आपकी मेहनत का बदला दे आपको. तो और अगर एक खड़ा होता है ना सही काम करने के लिए, तो उसके पीछे काफिला खुद ब खुद बन जाता है. और जब मैंने ये सेशन स्टार्ट करा था, हमने जब ये सेक्सुअल अब्यूज और चाइल्ड अब्यूज के बारे में हमने सोचा कि हम ये करेंगे, तो मुझे अगेन इस पे भी बहुत लोगों ने कहा कि सेंसिटिव टॉपिक है, क्या जरूरत है, इस तरीके से करो, उस तरीके से करो. आई वाज लाइक, नहीं, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज हम लोग जो इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल विद द पीपल हु आर डूइंग इट. तो हमने आवाज उठानी है, हमने अपने बच्चों के लिए आवाज उठानी है, हमने मेहनत करनी है. एंड मदर्स जो कि ये बिलीव करती हैं कि क्या फायदा है, इससे होगा क्या, बच्चे पे तो गुजर गई या हम पे तो गुजर गई. देखें, सूरज की तरह चमकना होता है ना, तो सूरज की तरह जलना भी पड़ता है कभी कभी. एंड आई थिंक आपका जो अपना टैलेंट है वो ऐसे ही बाहर आता है. तो keeping that in mind, let's just start with the topic today, and I'll call Amara on the screen. Hello, Amara. Assalamualaikum. Assalamualaikum assalam. Assalamualaikum Tuba. Hope you're well and feeling a bit relaxed now. हाँ जी जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है मेरी तुबा? Can you hear me? हाँ हाँ आ रही है, थोड़ा सा लैग हो रहा है, but I can hear you. चलो, I think it's just like the internet connection. Yeah.
external factors. So before we jump into the topic, Amara, do you want to? Yeah, yeah. I think this is everywhere. I'm just so annoyed. Anyways, so Amara, do you want to say something before we jump into the topic? I think it's very, very important because we are going to talk about some really serious stuff today. Some बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक हकीकी जो हकाइक हैं, we are going to talk about those, and I'm sure because we all are in that culture जहाँ पर इस तरह की बातें करने को बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता, because people are not very acceptable in terms of talking about the ground realities of our society. So if any of you feels like you might feel a bit comfortable, I think आप जो है अगर आपको लगता है कि any of this, because we're going to talk about sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, neglect, all sort of abuse one can feel or one can go through. We might talk about all of those aspects. So if you think like any of that content might trigger any anxiety in you or might be a bit more not really, can make you a bit anxious, I would prefer, like, if you just maybe, try not to watch the video, and maybe, maybe just ask your friend what we talked about and stuff, rather than you watching it. Or because the whole purpose of talking about these things is to provide knowledge, is to provide awareness, or and of course to talk about how we can work on it to make the situation and things better for us and for our coming generations. But again, aapki mental health is important for us. But and if you think that this can be triggerous for you, we would recommend कि जो है it's beneficial for all of us कि आप जो है थोड़ा सा step back कर जाएं और ना जो है इसका हिस्सा मत बने. I think that is because of course, as I said before, we're going to talk about some really intense stuff today. So yeah. And thank you so much, Amara, to put out that disclaimer. But मैं not as a psychologist, मैं as a जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है, जहाँ मुझे लगता है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मैं वो जरूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में ही ना इंसान थोड़ा नई चीज सीखता है. So, but again, what Amara said, disclaimer, yes, it's going to be triggering. So please be aware about it. So Amara, before we jump into the real stuff, what is child abuse? Abuse है क्या? चले, abuse, it's a very broad term, मगर अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो हर वो चीज जो कि एक इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल है, एक इंडिविजुअल के लिए अनकंफर्टेबल है और उसकी मर्जी के खिलाफ है, मतलब इट्स समथिंग दे डोंट वांट टू डू, और मगर उन पर जो है वो मुसल्लत कर दी जाती है, दैट इज अब्यूज. Any exposure to external factor which is not with your consent is abuse. It could be anything. It could be sexual abuse, it could be physical, emotional abuse, anything जो आपके लिए नुकसानदेह है and you're not willing to take that will come under the criteria, जो कहते हैं ना एक abuse के ज़मरे में आता है. या एंड आई थिंक ये चीज बहुत हम लोग जो है ना चाइल्ड अब्यूज का कहीं वर्ड पढ़ते हैं तो अपना अखबार बंद कर देते हैं. ये गलत है. ये अब्यूज जो है ये जैसे कि अमाना ने कहा, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म. ऐसा नहीं है कि चाइल्ड अब्यूज का मतलब है कि अब ये कोई सेक्सुअल कंटेंट में ही बात हो रही है तो वी शुड नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट, वी शुड इग्नोर इट. इसके बहुत सारे पहलू हैं. तो हम मेरा मतलब पेरेंट्स जो घर में अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं फिजिकली, वो भी अब्यूज है. तो हम लोग उन सब के बारे में बात करेंगे. तो हमारा नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ अब्यूज. जी जी, ओके. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अब्यूज की तुबा, तो आई एम गोइंग टू टॉक जो चीज सबसे ज्यादा कॉमन है हमारे मुआशरे में, हम उससे बात करेंगे कि विच टाइप ऑफ अब्यूज इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अब्यूज, एंड देन ऑफ कोर्स गोइंग टुवर्ड्स द मोर एक्सट्रीम वंस. आई थिंक जो हमारे मुआशरे में या हमारी सोसाइटी में एक चीज जो मिडिल क्लास में पढ़े लिखी फैमिलीज में भी होती है, मैंने आपने आई थिंक 99% ऑफ अस might have seen that is verbal, emotional and physical abuse. That is very common in our culture. And the bad thing is कि हमारे यहाँ जो parents हैं या हमारे यहाँ जो individuals हैं, even हमारी generation के लोग, they don't actually understand कि this is harmful and this is something which is not going to benefit neither you and neither your child. वो टाइमली तो है उस चीज का फायदा हो जाता है. जैसे हमारे यहाँ फिजिकल अब्यूज की रीजन ये दी जाती है कि जो है अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, बच्चों को पता कैसे चलेगा. हमारे यहाँ
कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाउंड्रीज का। हमारे यहाँ डंडा, कहते हैं ना डंडा उस्ताद है, उस चीज को बहुत ज्यादा जो है उसी चीज का एक राज चलता है। मतलब हमारे यहाँ वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आप यू नीड टू पुट द बाउंड्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग एंड देन डू द पेरेंटिंग। हमारे यहाँ जो भी बात स्टार्ट होती है, ईदर इट्स लाइक सो मच लव एंड मुमू चुचू चुचू टाइप की चीजें, यहाँ पे जो है वो एकदम बिल्कुल मतलब टमाट टमाट मार देंगे, और जो है और उस चीज को कोई बुरा ही नहीं मानेगा। कमिंग टुवर्ड्स वर्बल अब्यूज अगेन इट्स वेरी वेरी कॉमन। हमारे यहाँ गालियां देना या हार्श वर्ड बोलना या बॉडी शेमिंग, बच्चों की बॉडी शेमिंग इज सो कॉमन कि यार तुम्हारी इसका रंग कितना पक्का है, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें, इसकी आंखें देखो, ये बोलती कैसी तो है ही, टिड्डा इतनी तेज है, ये इतना चालाक है, ये तो बात ही नहीं सुनता, कितना खाता है। हाँ बिल्कुल। एवरीडे चीजें देखे, देयर आर सो मेनी लिटिल थिंग्स, सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स वी गिव आवर चिल्ड्रन ऑन अ डेली बेसिस विदाउट रियलाइजिंग कि ये सारी चीजें कम्स अंडर एन अब्यूज, अ वर्बल अब्यूज। गाली गलौज के अलावा ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनके इतने लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हैं बच्चे की सेल्फ स्टीम पर, बच्चे की पर्सनालिटी पर। और जब हम इन सारी चीजें सुनते सुनते हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर हम ब्लेम करते हैं कि भाई फेयर एंड लवली वाली कैंपेन क्यों चल रही है, ये क्यों चल रहा है, वेट लॉस की कैंपेन क्यों चल रही है, क्यों? क्योंकि भाई ये चलेंगी ना जब हमारे जैसे लोग पेरेंटिंग करते हैं, तो हम इस चीज को इतना नॉर्मल करेंगे कि इस तरह के कमेंट करना आसान है, हम लोगों की सेल्फ स्टीम को बिल्कुल बेस से ही मार देंगे। तो ऑफ कोर्स टू ओवरकम दैट थिंग दे विल यूज दिस प्रोडक्ट्स, तो इन चीजों की डिमांड होगी। मगर द गुड, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, एंड द गुड थिंग इज कि अभी रिसेंटली आई हैव सीन ऑन सो मेनी फेसबुक ग्रुप्स एंड सो मेनी मीडिया एंड स्टफ कि भाई बहुत ज्यादा इस चीज के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई दिस शुडंट बी द वे एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड स्टफ। बट आई थिंक अगर हम ये इन चीजों को स्टॉप करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, वी हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स, वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन चीजों को जो है वो डालें एंड ही। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इंस्टेड एग्जैक्टली। ऑफ, एंड आई हमारा ये जो बात है ना कि मैंने देखा है कि वो खवातीन या वो मर्द, वो पेरेंट्स उन लोगों तनकीद करने में आगे होते हैं, मगर जब अपने बात आती है अपने बच्चों के साथ वो वही सलूक कर रहे होते हैं, बिल्कुल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, एंड दे डोंट इवन बिल्कुल रियलाइज इट। या बिल्कुल। और एक अदर फॉर्म होती है इमोशनल अब्यूज की। इमोशनल अब्यूज तो हमारे यहाँ मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई माँ बाप हैं जो नहीं करते। हमारे यहाँ तो वो शुरू से ही बोल दिया जाता है कि वो नहीं होता कि अम्मी से ज्यादा प्यार करती हो, अब्बा से ज्यादा प्यार करती हो, एंड देन इसकी एक्सट्रीम फॉर्म के अगर बच्चा बात नहीं मान रहा है तो जो है वो उसको अजीब अजीब तरह से उसको ट्रीट करना, उससे नाराज होना, उसको इमोशनली टॉर्चर करना, बच्चे से बिल्कुल जो ना एकदम से बहुत ज्यादा प्यार करना, एकदम से बिल्कुल पीछे हो जाना। और हमारे यहाँ ये भी वो बहुत भी है। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा के। एक बिल्कुल तो जब गलत, पता है यहाँ पे एक पॉइंट है कि बच्चे ने गलती कर दी, ठीक है, आई एग्री, बच्चे से एक जेन्युइन गलती हो गई, आपने उसको डांटा, आपने उसको मारा, आपने उसकी सेल्फ एस्टीम की धज्जी उड़ा दी, मगर उसको बताया नहीं कि गलती क्या थी। बिल्कुल। ट्रू दैट। तो ट्रू दैट। वो और अब वो चीज रिपीट भी होगी तो उसको पता कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली जो फॉर्म्स हैं, कंसिडरिंग फिजिकल, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, दैट इज द मोस्ट कॉमन type of abuse in our culture, and I think these are the things we really need to work on. We'll elaborate on them further. मगर अगर हम बात करें इनके साइड इफेक्ट्स की, तो जो है अगर हम बात करें कि फिजिकल अब्यूज किस तरह से बच्चों को नुकसान दे सकता है जब वो बड़े होते हैं, तो जो आपकी इमोशनल एक ग्रोथ होती है या जो इमोशन रिकग्निशन होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, जो आपका एक अटैचमेंट होता है वो नहीं डेवलप हो पाता। तो डेवलप दोज कनेक्शंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है हम इन चीजों पर गौर करें और इन चीजों पर काम करें बीइंग अ पेरेंट, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो डिफरेंट तरीके से अपनी पर्सनालिटीज को परसीव करें, वो डिफरेंट तरीके से चीजों को और सिचुएशंस को डील करें। So this is one type of abuse. We're coming towards the second, which is called neglect. हमारे यहाँ neglect is a form of abuse, जिस पर यहाँ जो एक होता है ना कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी फैमिली कल्चर ऐसा है कि इधर जो है बच्चे बहुत ज्यादा माँ से अटैच होते हैं और बाप चूंकि वो बाहर होते हैं तो उनसे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है, और अगर बहुत ही आइडियल सिचुएशन में ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो माँ और बाप दोनों से इक्वली अटैच हों। कमिंग टुवर्ड्स निग्लेक्ट एज अब्यूज के बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो है बिकॉज आपके ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा है बीइंग अ फादर कि जो है आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो बच्चों की आपके साथ वो अटैचमेंट हो ही नहीं पाती। दैट ऑल्सो कम अंडर द
कहते हैं ना कि एक इनडायरेक्ट अब्यूज है। इसके अलावा जो आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, ये चीज तो बहुत कॉमन है कि आपस में लड़ाई होगी तो बच्चों को इग्नोर करेंगे। दैट ऑल्सो कम अंडर अब्यूज बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग चाइल्ड वांट। ठीक है, दैट विल लीड टू अटैचमेंट इश्यूज व्हेन द चाइल्ड विल ग्रो अप। ठीक है, इसके अलावा निग्लेक्ट में आता है कि हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ा है कि बाज़ औक़ात बच्चों को इतना ज्यादा प्यार दिया जाता है, इतना ज्यादा प्यार दिया जाता है कि मतलब वो कुछ भी करें इट्स फाइन, कोई मसला ही नहीं है। वो दादा दादी हो या नाना नानी हो, ये ना बिल्कुल स्पॉइल कर देते हैं। हमारे यहाँ बच्चे रात को 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं। दैट ऑल्सो कम अंडर निग्लेक्ट। अगर आपने, क्योंकि आप जब जो जान को दुनिया में लाते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, फुली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंडिविजुअल। अब अगर आप उसके शुरू से ही कोई रूटीन सेट नहीं करेंगे, दैट डज कम अंडर निग्लेक्ट। अगर उस बच्चे का स्लीप साइकिल नहीं है, दैट कि वो टाइम पे उठने सोने का वक्त नहीं है, दैट इज ऑल्सो निग्लेक्ट। ठीक है, अगर हमारे यहाँ जैसे बच्चे ये नहीं खाता वो नहीं खाता, बच्चे को बहुत ज्यादा जंक फूड दिया जाता है, ओवर पैम्पर किया जाता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ निग्लेक्ट। ठीक है, मैं अभी वो वाली बात चीजें बता रही हूँ जो हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज्यादा होता है, और हम समझते हैं कि ये बहुत ही कोई अच्छी बात है कि हाय अल्लाह, मेरा बेटा तो सब्जियां खाता ही नहीं है, कि हाय ये अल्लाह नॉर्मल है। मेरी बेटी चिप्स ही और खाती है। क्योंकि ये तो अगर यहाँ पे तो पेरेंट्स का ये सोच है ना कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं तो ठीक ठाक आ गई ना निकल के, तो ये बिल्कुल मेरे बच्चे भी ठीक ठाक ही निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और जो है अगर बच्चा 2-2 बजे तक रात को जाग रहा है, बच्चे का कोई सोने जागने का टाइम नहीं है, दैट इज निग्लेक्ट, बिकॉज उसको तो नहीं पता, वो तो बच्चा है। अगर एक बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो दिन के 8 घंटे है, बच्चा गेम खेल रहा है और आप फिर बोलते हो वो सुनता ही नहीं है या वो सुनती ही नहीं है, हम क्या करें, वो रोता है, वो खाना ही नहीं खाती है, खाता बिना टीवी देखे। बट वो, मतलब बच्चे जो है वो एक कहते हैं ना क्लीन स्लेट होते हैं, उस पे आप जो लिखोगे वही वो पढ़ेगा। ठीक है, अगर आपने उसके लिए एक एक स्ट्रक्चर या बनाया ही नहीं है, तो वो कैसे, आप कैसे उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बिना टीवी देखे खाना खा लेगा, जब आप उसके लिए टीवी ऑन कर ही रहे हो कि भाई इट्स इजी, शॉर्टकट वाली चीज है। एंड आई अंडरस्टैंड फॉर सम पेरेंट्स बहुत ज्यादा, या बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि भाई इट्स हार्ड टू मैनेज दैट थिंग। मगर ऑन द अदर हैंड ऑल दीज थिंग्स कम अंडर नेग्लेक्ट। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर नेग्लेक्ट अब्यूज में जाए, अब्यूसिव नेग्लेक्ट, तो दैट इज मुझे तो एंड हमारा मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए ना ये कि बच्चों को जैसे वो खाना नहीं खा रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है तो स्क्रीन टाइम दे देते हैं, कार्टून लगा के दे देते हैं। मुझे लगता है कि ये बच्चे से ज्यादा एक पेरेंट्स की रीइंफोर्समेंट है। चलो एक बिल्कुल जगह तो बैठ गया, चलो खाना तो खा लिया, चलो इतनी देर में मैं ये अपना काम तो कर सकी, तो हम लोगों को तो ये लगता है कि बच्चे का काम हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड आपने ये अंडरस्टैंड है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर और ये तो वो वाली चीजें थी जो हमारी सोसाइटी में ज्यादा मतलब मैं बोलूँ कि एक एवरेज पाई जाती है, जिन पर हमें काम करना चाहिए, जो कि पेरेंट्स सोचते भी नहीं है कि दीज थिंग्स आर एक्चुअली हार्मफुल। ठीक है, और जो दूसरी चीज है, अगर हम निग्लेक्ट का एक एब्यूजिव पहलू देखें, तो वो है कि भाई बच्चों की हाइजीन का ख्याल ना रखना, उनके जो है उनको टाइम ना देना, उनके खाने पीने का ख्याल ना रखना, और जो है बच्चों से कोई अफेक्शन शो ना करना, बच्चों को निग्लेक्ट करना, मतलब बिल्कुल वो क्या कह रहे हैं उनकी बात नहीं सुनना। वो एक जो है ना फेस टू फेस, वो जो एक रिलेशन होता है ट्रस्ट वाला, वो ना होना, वो सारी चीजें भी निग्लेक्ट में आती है। मगर चूंकि हमारे कल्चर की, हमारी सोसाइटी की नॉर्म ऐसी है कि हमारे यहाँ बच्चे वैसे भी माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, बाप से कम होते हैं, तो आई थिंक जो एक निग्लेक्ट वाला पार्ट है उसमें जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के से अगर मैं लिंक करूं पर्टिकुलरली हमारे कल्चर में, तो आई थिंक दैट नेग्लेक्ट इज मेनली टू फ्रॉम फादर साइड, बिकॉज मगर वो अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि वालिद जो होते हैं वो वैसे ही काम पे बिजी होते हैं। बट हम रियलाइज नहीं करते, बिकॉज आई नो इट्स इंपॉर्टेंट, बट हम रियलाइज नहीं करते कि दीज थिंग्स डज मेक अ डिफरेंस। जब बच्चे बड़े होते हैं तो यू रिपीट दोज पैटर्न। तो आई थिंक दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अब्यूज। अब हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ बिट बिट मोर टैबू, विच इज सेक्सुअल अब्यूज। अगर हम बात करें सेक्सुअल अब्यूज की, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में तो ये तो एक के नाम ही लेना एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करना चाह रहे हो तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। इस चीज को ये बहुत, परसेप्शन है कि हमने ये हमारा, कैन यू हेयर मी, मैं कुछ
हाँ, अभी आपकी मुझे बिल्कुल आवाज आई आ डोंट रही नो थी। मेरी आवाज आई कि नहीं आई। बिल्कुल, वो बीच में आपका कट गया था एक्चुअली। अब आई? हाँ जी, अब आ रही है, बिल्कुल, यू राइट, अब आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये भी हमारी परसेप्शन है कि फादर्स चूंकि कमा के ला रहे हैं घर में और बच्चे की पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, मेरे लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, मेरे बच्चे को कपड़ा दे दिया नया या खाने को दे दिया। I lost you, Tuba. I can't hear you, unfortunately. ओके, आई थिंक तुबा का जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट दैट्स फाइन। आई थिंक विल कैरी ऑन। आई थिंक तुबा यही कहना चाह रही थी कि जो है हमारे यहाँ ये भी बिल्कुल परसेप्शन है कि भाई अगर वालिद कमा के ला रहे हैं तो दैट इज हिज जॉब इज डन सॉर्ट ऑफ थिंग, कि भाई बिकॉज वो इस चीज में बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं कि भाई वो जॉब पे जा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों की फीसें दे रहे हैं, तो समहाउ इट्स फाइन और इट्स अंडरस्टैंडेबल कि अगर वो जो है बच्चे की इमोशनल ग्रोथ में या एक वैसे पेरेंटिंग में अहम किरदार अदा ना करें। आई गेट इट तुबा, बट अगेन बिकॉज वी अंडरस्टैंड, वी रियलाइज दिस कि नहीं, जब आप बड़े होते हो तो आपको जितनी एक माँ की जरूरत होती है, आपको आपकी वालिद की भी उतनी ही जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की, और यू नीड टू हैव इक्वल अटैचमेंट विद योर फादर एज वेल। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ अ टैबू सॉर्ट ऑफ थिंग, और एक या स्टीरियोटिपिकल हमारा यकीन है, दैट इज आल्सो समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन, और वी नीड टू नॉर्मलाइज दैट थिंग कि नहीं भाई, जितना एक वालिदा का किरदार है उतना ही एक वालिद का किरदार है, एंड वालिद वालिद शुड नॉट बी द फिगर जिससे आप सिर्फ डरो, या जिसको अम्मा से जो है एक कहते हैं ना धमकी के तौर पे यूज करे कि भाई आने दो तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी कि तुम अच्छी जो है ना आज शरारत कर रहे थे, या तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो दैट जो है ना फेयर वाली चीज अटैच हो जाती है। तो आई थिंक कि जो है हमें एक इस चीज पर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है एज अ कल्चर, कि जो है हम वालिद को भी इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल बनाएं बच्चों की अपब्रिंगिंग में, और जो है और एक जो एक अटैचमेंट में, यू नो। तो या, यू आर राइट। यस, शुड आई कंटिन्यू और डू यू हैव एनीथिंग टू बिल्कुल, ऐड? एब्सोल्युटली। एंड हमारा यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर बोलूंगी कि कोई वजह है कि साइकोलॉजिकली निग्लेक्ट को एक अलग हेडिंग के साथ समझाया जाता है। हाँ, हेलो? क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आई थिंक इसकी जो मेन हेलो? वजह है, हेलो, आई कैन हियर यू तोबा, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? सही। तो आई थिंक जो मेन वजह है निग्लेक्ट को तो एक मैं यही कह रही हूँ कि कोई वजह है कि निग्लेक्ट को एक अलग हेडिंग दे के उसकी इम्पोर्टेंस को रखा गया है। वो इमोशनल अब्यूज के अंदर नहीं आता। निग्लेक्ट की अपनी अहमियत है। बिल्कुल, क्योंकि अगेन निग्लेक्ट की अपनी अहमियत इसलिए क्योंकि निग्लेक्ट का जो एक पूरी चीज़ है वो वैसे ही निग्लेक्ट हो जाती है। मैं वही तो कह रही हूँ कि इतनी ये चीज़ नॉर्मलाइज़ है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन ट्राई टू मूव। कि जो है वो इस चीज को एक बड़ी चीज माना ही नहीं जाता है। मतलब हमारे यहाँ निग्लेक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इस पूरे एक एस्पेक्ट है अब्यूज की, इसको इतना कोई अहम समझा ही नहीं जाता। आई थिंक इसलिए जो है ये निग्लेक्ट वैसे ही निग्लेक्ट हो जाता है। हम्म। अभी या, आई कैन। इंटरनेट में मूव की हूँ कि शायद नेट थोड़ा बेहतर हो जाए, बट लेट मी नो। या, तो यही मैं बात कह रही थी कि इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है। देयर वाज अ रिसर्च दैट आई वाज रीडिंग दैट neglect का psychological impact is more than physical.
So it means it is so alarming, और इस चीज को हम इतनी लेस अहमियत देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल ट्रू दैट. क्योंकि हम लोग वही तो बात है ना कि हम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द थिंग. मतलब इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. वाली चीज है ना क्या. Hello? मैंने कहा हम लोग बिकॉज हम लोग इसको बिल्कुल मान चुके हैं, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस वजह से जो है ये चीज इतनी नॉर्मलाइज हो गई और लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. आई थिंक ये इंटरनेट के आज खासे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो गए हैं. चले जीतूबा, you're back. I can see you. I'm here. You continue. I'm here. बोलो. सही. अच्छा, अब हम आते हैं जो है आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो एक फॉर्म है अब्यूज की, विच इज सेक्सुअल अब्यूज, अ बिट मोर ऑफ अ टैबू, जिसके बारे में बात करने से ही लोगों को जो है ना एक वो थोड़ा सा एक अजीब सी बात लगती है, विच इज फाइन, बिकॉज आई थिंक इट विल टेक टाइम. इवेंचुअली हम लोग ने बात करना स्टार्ट तो की है ना. I am sure कि within couple of years things will be a bit more acceptable. People will be more open to talk about it. People will be more open to take initiatives, and people will be more open to take responsibility for these things. हमारे यहाँ अगेन जो, क्योंकि मैं बार बार ये चीज हमारे यहाँ इसलिए कह के बात करती हूँ कि हम एक जो एक ले मैन लैंग्वेज है या जो एक ले मैन लेवल है उसके लेवल पे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करना, या इसको अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है इसको कन्फ्रंट करना इज लाइक इज्जत और बेइज्जती का मामला. मतलब इट्स नॉट लाइक समथिंग. Can I actually say something a little harsh there? हमारा यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि हम ऐसे लोग हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है, हम इस कल्चर में हैं जहाँ सेक्सुअल अब्यूज करना सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करने से ज्यादा आसान है. बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, दैट इज ट्रू. और हमारे यहाँ मैं वही तो बात कर रही हूँ कि इवन दो समटाइम्स आप कन्फ्रंट भी करो और आप सामने भी आओ या बच्चे बात भी करें, तो हमारे यहाँ जो एक फर्स्ट रिएक्शन होता है वो यही होता है कि इट्स फाइन, इस बारे में बात ना करो. क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज को अगेन वही बहुत ज्यादा इज्जत और बेइज्जती वाले उसमें ले लिया जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि हाई अल्लाह इसके बारे में बात नहीं करना. ये बहुत मतलब एक पता नहीं क्या हो जाएगा. लेकिन coming to it forward towards like coming towards explaining what sexual abuse is in terms of law, या हम कहने के sexual abuse है क्या, तो वो मैं explain करूंगी कि जो है sexual abuse can be anything in terms के मतलब it's not only actually के जो है only having that thing कि भाई किसी ने आपको rape किया है. It's not, रेप इज नॉट ओनली सेक्सुअल अब्यूज. सेक्सुअल अब्यूज में आता है जो है किसी को बच्चे को या इंडिविजुअल को जो है आपका एक बुरी नियत के साथ टच करना, बुरी नियत के साथ जो है जो एक सेक्सटिंग होती है, मैसेजिंग होती है, या किसी की प्राइवेट पार्ट्स को देखना, किसी को बिना परमिशन के टच करना, किसी से गंदी बातें करना, ये सब चीजें जो है वो सेक्सुअल अब्यूज के जमरे में आती हैं. मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सेक्सुअल अब्यूज को सेक्सुअल अब्यूज माना ही नहीं जाता ना जब तक कि वो जो है मतलब एक अनलेस इट्स अ रेप और अनलेस इट्स समथिंग एक्सट्रीम. ठीक है, हमारे यहाँ उसी चीज को जो है माना जाता है. अब बात करते हैं कि किस तरह से आप अगर अपने बच्चों से इस बारे में बात करें, किस तरह आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें कि ये क्या होता है. तो आई रिसेंटली स्पोक टू डिफरेंट वुमेन जो नॉर्मल हमारी पाकिस्तानी वुमेन होती है. मैंने उनसे उनके आइडियाज भी पूछे थे. कुछ औरतों से मैंने खुद पर्सनली भी बात की जो मतलब माएँ हैं. तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी प्लीज टू हेयर कि भाई मोस्ट ऑफ देम वर विलिंग कि भाई हमारे बच्चों को बिल्कुल बच्चों को जो है वो सेक्स एजुकेशन दी जाए, बच्चों को बताया जाए, बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए फ्रॉम द बिगिनिंग के बैड टच और गुड टच क्या होता है, और जो है कि कंसेंट क्या होता है बेटा. एंड इफ समवन इज मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल, if you will explain your child what uncomfortable is, that is it. कोई भी चीज जो आपके बच्चों को abnormal लगे, that is उसको उस चीज को रिपोर्ट करे आपको. आप और उसके लिए जरूरी है कि अगेन जिन चीजों की हमने पहले बात की कि आपके अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट हो. ठीक है, अगर आप अपने बच्चे की तरफ इफ यू विल बी अब्यूजिव टुवर्ड्स योर चाइल्ड इन एनी फॉर्म, इट कुड बी फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और नेग्लेक्ट,
आपके बच्चे की आपके साथ अटैचमेंट ही नहीं है, तो वो कभी आकर आपको कन्फ्रंट ही नहीं करेगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले दूसरी फॉर्म ऑफ अब्यूज एक्सप्लोर की थी, ताकि हम बता सकें कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट सिक्योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, कि अगर कल को कुछ भी ऐसे होता है तो बच्चा कैन कम फॉरवर्ड एंड टेल यू कि भाई मुझे ऐसा फील हुआ है या किसी ने ऐसा किया है। ठीक है, और उसमें आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका बच्चा कहता है कि भाई ही इज और शी इज अनकंफर्टेबल अराउंड सम रिलेटिव्स, या अराउंड some people, you should take action, you should notice that. बिल्कुल, और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स टू नो कि बिफोर ये नौबत आई ना कि आपको अपने बिल्कुल बच्चे को आपको आगे ये बताना पड़े कि भाई मेरे साथ ये हुआ है। अगर आप उसको पहले से कंसेंट का कॉन्सेप्ट दें, आप उसको बिल्कुल बिल्कुल ट्रू दैट, कि जो है अगर मतलब अगेन बट वही बात फिर वही है तुबा, मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगी कि इन सारी चीजों के लिए, मतलब ये बोलने में आसान लगती है, इन सारी चीजों के लिए यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नीड टू पुट योरसेल्फ देयर इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन टू हैव दैट सेफ रिलेशनशिप, सेफ एंड सिक्योर रिलेशनशिप, या जहां पर बच्चा आपसे बिल्कुल, बात कर सके। ठीक बिल्कुल, है, लेकिन या अगर आप किसी भी फॉर्म में उसके लिए अब्यूजिव होंगे तो आपकी वो अटैचमेंट होगी नहीं बच्चे के साथ। अगर बच्चे को लगेगा कि वो आपसे डरता है, ही इज नॉट सिक्योर अराउंड यू बीइंग अ मदर, और यू आर अ काइंड ऑफ अ जजमेंटल पेरेंट, मदर और अ फादर, of course the child will not या step forward and come and speak to you about it। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर या आप या again which is and फिर बच्चे को ये लगता है कि अम्मी समझेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ या झूठ बोल बिल्कुल अब्बू बोलेंगे कि फिर से कहानी बना रहा है तो उसको पढ़ाई पे इस तरीके की ये ना एस्केप बिहेवियर्स ढूंढ रहा है। तो जब उसको बिल्कुल बच्चे को इतना ये टाइटल मिल चुका होता है तो वो वैसे ही घबराता है, अपने आप को दूर कर लेता बिल्कुल है। बिल्कुल ट्रू दैट। तो आई थिंक ये वाली चीजें बेसिक है, बच्चों को जो है उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना। आपको लगे कि जब बच्चा 5 से 6 साल का है हम्म। तो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग या हिम कि बेटा यू आर डिफरेंट, द गर्ल्स आर डिफरेंट एंड द बॉयज आर डिफरेंट, यू नो, एंड दीज आर द या प्राइवेट पार्ट, नो वन शुड टच यू। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप खुद आदत डालें कि जब आपको लगे कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो स्टार्ट टेकिंग परमिशन कि बेटा कैन आई किस यू, बेटा कैन आई होल्ड योर हैंड, वुड यू लाइक टू होल्ड मम्मा's hand, or would you like to hold, would you like to hug mommy, or would you like to hug daddy, हम्म। basic questions, so the child will यस। understand okay, it is normal, no one can touch me, no one can हम्म। hug me without my permission, either it's being my mother or my father। या इवन द पीपल हु आई कैन ट्रस्ट हु आर माय पेरेंट्स दे आर टेकिंग माय परमिशन। या बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो लेकिन ब्रिलियंट। ये वाली सारी चीजें आपको बचपन से बच्चों के अंदर डालनी होंगी, ताकि जब कल को कोई अंकल या आंटी या कोई पेयर टू पेयर अब्यूज जो होता है, जब दे ग्रो अप, अगर इवन उनके साथ के बैचमेट्स भी मुझे याद है कि इवन आजकल तो वही वाली बात है कि टाइम बदल रहा है, आजकल में 4th 5वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, 4 या 5 चिल्ड्रन, दे हैव सेल फोन, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, दे हैव इंटरनेट, सो दे नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि अगर पीयर टू पीयर भी वो अनकंफर्टेबल हैं तो दे कम फॉरवर्ड एंड दे टेल यू कि मम्मा मेरी क्लास में एक लड़की है या मेरी क्लास में एक लड़का है, और आई डोंट लाइक द वे ही लुक एट मी, और आई डोंट लाइक द वे शी टॉक्स टू मी, these sort of things they should come forward। और हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है तुबा, कि अगर एक लड़की है तो उसके लिए उसको सिर्फ एक लड़का ही अब्यूज कर सकता है या एक आदमी ही अब्यूज कर सकता है। नो, दैट इज नॉट ट्रू। इवन वुमेन कैन बी अब्यूजिव टुवर्ड्स अदर वुमेन एंड वुमेन कैन बी अब्यूजिव टुवर्ड्स मेन। ठीक है, तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज है। या अगर आपका बेटा अनकंफर्टेबल है, सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स जो हैं वो मेल बच्चे, लड़के बच्चे भी होते हैं, इसमें कोई बिल्कुल, शक नहीं है। और एब्यूजिव औरतें भी होती हैं, इट्स नॉट लाइक कि खाली मर्द ही औरत का अब्यूज करेगा, समटाइम्स जो औरतें होती हैं ट्रू, दे आर अब्यूजिव टू। एब्सोल्युटली। ठीक है, एंड आई थिंक हमारे कल्चर में औरतों को ना वो थोड़ी सी मिल जाता है सॉफ्ट कॉर्नर कि अच्छा ये तो कैसे कर सकती हैं, ये तो औरत होके तो नहीं कर सकती, और ये भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपकी बेटी किसी खास औरत से या कुछ खास दोस्तों से भी अनकंफर्टेबल है तो यू शुड जस्ट बी, डोंट बी जजमेंटल, डोंट हाँ, assumptions के बिल्कुल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम ओवर थिंक कर रही हो। अगर आपको लगता भी है योर चाइल्ड इज ओवर थिंकिंग, स्टिल यू डोंट हैव टू से इट, जस्ट लिसन टू योर चाइल्ड विदाउट बीइंग अनजजमेंटल, उसकी बात समझें, जस्ट ट्राई टू लुक द पिक्चर फ्रॉम हिज और हर आईज कि वो कैसे देख रहा है चीज को, उस चीज को समझने की कोशिश करें।
ठीक है, एंड देन डिसाइड ऑन दैट बेसिस कि भाई क्या आपके बच्चे के लिए सही है और क्या गलत है। अब कमिंग टुवर्ड्स अगेन सेक्स एजुकेशन, मैं वही आपसे बात कर रही थी कि मेरी कुछ खवातीन से बात हुई एंड देन दे वर विलिंग और आजकल आई की। थिंक ये होता है ना, हमारा जो गैदरिंग है, फॉर इंस्टेंस ईद की गैदरिंग है कि सब लोग बच्चों को ईदी दे रहे होते हैं। अब ये बच्चों को सिखाया जाता है कि अब आपको ईदी मिली है, आप जाएं उनको गले लगाएं, जाएं उनको जाके प्यार करें। बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते, बच्चे किसी की गोद में नहीं बैठना चाहते। कुछ बच्चे किसी की गोद में बैठते हैं, उसी बोलते हैं मामा आई डोंट वांट टू। तो बच्चों को इतनी छोटी है, मेरे सामने की बात है, एक बच्ची को ये कहा गया कि अभी से इतनी नखरीली बना दिया है इसकी माँ ने, तो आज बड़ी होगी तो क्या करेगी। जबकि उसने सिर्फ ये कहा था मामा आई डोंट वांट टू सिट ऑन हिज लैप और हर लैप। And which I found कि this is a great thing कि if she is uncomfortable she should be listened। मगर यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा है, चलो बैठो, मैं तो बोल रही हूँ तुम्हें कि देखो उन्होंने ईदी दी है, उनसे बदतमीजी थोड़ी कर सकते हैं, देखो चॉकलेट्स लाए। नाउ द predators are in our society, they do bribe children, they do attract children by giving them chocolates or giving them gifts, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटे छोटे कम इनटू अटेंशन, जो बहुत बहुत जरूरी है कि हम इनको, इनके बारे में देखें, इनको इवेलुएट करें, इनके बारे में सोचें और कोशिश करें कि हम किस तरह से जो है इन चीजों से जो है अपने बच्चों को या अपने मुआशरे को सेव कर सकते हैं। देखिए, जो एक एक्सटर्नल अब्यूज होता है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि मतलब अगर यू नो यू बीन किडनैप्ड, और देन ऑफ कोर्स आप एक हर वक्त के रखवाले नहीं बन सकते, विच इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज एक्सीडेंट्स आर इन नो वंस कंट्रोल। आप नहीं बचा सकते, मगर जितना आप बचा सकते हैं, जितना आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीजों से, उतना होना चाहिए आपको, उतनी आपको कोशिश करनी चाहिए। व्हाई नॉट स्टेप फॉरवर्ड एंड डोंट थिंक कि यार इट्स अ काइंड ऑफ अ टैबू, मैं अपने बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहा हूँ, बच्चे के दिमाग से एंड अपने अनफॉर्चुनेटली हमारा द प्रॉब्लम इज कि बच्चा बाहर जितना अनसेफ है, उतना ही घर के अंदर भी अनसेफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री ऑन दैट। अच्छा, अब ये सारी बात मतलब ये हम वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज एंड स्टफ। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर लाइक कि हम, अगर हम ये सारी चीजें हम में है, या ये सारी चीजें हम अपने हाउस होल्ड में देखते हैं या अपने कल्चर में देखते हैं, तो हाउ वी कैन, you know, how we can be a bit better, because the whole concept of having these sessions, the whole concept of, you know, doing these live conversations is कि हम we come up with the outcome, we come up with the skills to, you know, to make ourselves better. I think being a parent, being an individual with young children, you know, it's not necessary that you're only a parent, being a you know, caretaker as well, auntie, khala, nani, chachi, mami, dadi या दादा, of course again same with अब्बू, भाई, यू नो, बड़ा भाई या बड़ी बहन या चाचू मामू, जो चीजें हम कर सकते हैं टू गिव योर चाइल्ड अ सिक्योर हाउस होल्ड या एक सिक्योर इन्वायरमेंट, वो बहुत बेसिक है। वन, कि कोई भी कुछ भी हो, जितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो, इट डजेंट मैटर व्हाट इट इज, नेवर एवर एवर रेज योर हैंड ऑन अ चाइल्ड। कभी भी आप, कुछ भी हो जाए, कभी भी उस लिमिट पे आप मत पहुंचे जहां पर आपको लगे कि अगर आप बच्चे को थप्पड़ मारेंगे या आप बच्चे को स्टिक से मारेंगे या किसी भी तरह से आप फिजिकली इन्वॉल्व होंगे, तो दैट विल मेक एनी बेटर। वो बच्चे के अंदर जो एक, जो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का ये यकीन होता है कि जब तक इसको थप्पड़ नहीं मारोगे तो ये तो बात ही नहीं सुनेगा, ये तो बात ही नहीं सुनेगी। आई थिंक दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू वर्क ऑन। ठीक है। सेकेंडली, कभी भी, यू नो, अगेन वी ऑल हैव द सिचुएशंस जिसपे आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो और आपको गुस्सा आ जाता है कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है। अगेन, अगर आपका बच्चा बदतमीजी कर रहा है और अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो दैट इज नॉट बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर चाइल्ड, दैट इज बिकॉज यू माइट हैव, आप कहीं चूक गए हो, या आपका, इट्स नॉट ओनली यू, मे बी आपका हाउस होल्ड ऐसा वेयर थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, जहां पे आपके इन लॉ ज्यादा डोमिनेंट है, या जहाँ पे फादर बहुत डोमिनेंट है, या फूफियां, चाचियां, खालाएं, मामियां, जो भी है वो बहुत डोमिनेंट है, वो आपको बच्चे से कम्युनिकेट नहीं करने दे रही, तो दैट इज अगेन देयर इज अ लैक इन अ सिचुएशन, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप चीजों को बेहतर बनाएं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आपको लगे कि मैं बच्चे को थप्पड़ मारूंगी या मैं बच्चे को इमोशनल डायलॉग मारूंगी। कि कुछ माओ को मैंने ये भी देखा कि यू नो, अगर वो उन्हें बच्चे से कोई बात मनवानी होती है, देन दे विल स्टार्ट दिस थिंग, बेटा तुम मेरी बात ही सुन रहे हो, यू नो, दे स्टार्ट क्राइंग, और आप मम्मा को अपसेट कर रहे हो, आप मम्मा को परेशान कर रहे हो, यू नो, ऑल दैट इमोशनल टॉर्चर। डोंट डू दैट, दैट, you know, this will not help you or this will not help your child।
वो Yeah. वक्त पर आपकी बात मान जाएगा या मान जाएगी, बट जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा हार्म यू हैव पुट इनटू दैट चाइल्ड। एंड आई हैव सीन पर्सनली वेरी क्लोजली कि जिसमें माएँ जो होती हैं वो ये करती हैं कि वो बच्चे के सामने रो रही है, बट बच्चा इज नॉट लिसनिंग टू दैट पैरेंट, वो रोएंगी कि बेटा मेरी बात नहीं मान रही हो, मम्मा इज सो अपसेट, मम्मा इज दिस, मम्मा इज दैट, एंड देन द चाइल्ड विल डू द सेम। अगर बच्चे को कुछ चाहिए होगा, मतलब 12-13 साल के बच्चे, you know, I've seen with my मतलब very personal experience, and they are crying and they're like मुझे ये चाहिए, and then they will cry and then mama will do the same, because मम्मा को पता है कि अगर ये रो रहा है और मैंने इसकी बात नहीं मानी तो कल को मैं रोऊंगी तो ये मेरी बात नहीं मानेगा या मानेगी। But हाँ, this is not the way वो लोग this, तो यहाँ पे तो वो है ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाते हैं बच्चे कि कल को बिल्कुल ये मेरे लिए ये, मतलब हम ये भूल जाते हैं, बेसिक कोर भूल जाते हैं कि इनकी कॉम्प्रिहेंशन, इनकी रिटेनमेंट, इनकी परसेप्शन अभी बहुत वीक है, हमारी बिल्कुल स्ट्रांग है, हमारी बहुत डिफरेंट है देन देम, और हम उसको इस लेवल पे मिसयूज करते हैं। माएँ अगर टीचर ने कभी कुछ अपने बच्चे को बोल दिया, वो स्कूल पहुंच जाती हैं लड़ने के लिए, मगर क्या वो ये देखती हैं कि घर में उन्होंने कितनी बार उसको नहीं सुना, उसको इग्नोर कर दिया। वो छोटा बिल्कुल सा भी मसला लेके आया था तो आपने कहा इतना छोटा मसला तुम लेके आए, उसके लिए वो कितना बड़ा मसला था, क्या आपने उसका वो क्वेश्चन रिजॉल्व किया? वो उस क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते किसके पास चला जाए, हु नोज। एंड देन द इंटरनेट, इंटरनेट इज आई थिंक खुला मैदान है बच्चों का, दे जस्ट टाइप समथिंग एंड दे विल गेट 100 आंसर्स, बिल्कुल उनमें से वो कौन, हु नोज। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट तुबा। यही तो बात है कि आजकल के time में, आजकल का जो दौर है या आजकल के जो बच्चे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। तो इट्स या बेटर rather than using the things our parents used to do. I think हम लोगों की most of us have been raised by using all these strategies. एक थोड़ा सा इमोशनल हो गया, ब्लैकमेलिंग, थोड़ा सा वैरायटी नेग्लेक्ट, इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। थोड़ा सा चमाट चमाट हो गए, यू नो। हर चीज लगी है, या हम लोगों को ऐसे ही रेस किया गया, बट हम जिस दौर में थे दैट वाज डिफरेंट। जो आजकल के बच्चे हैं दे आर डिफरेंट, यू नो, दे आर वेरी स्मार्ट। इट्स नॉट बिकॉज दे आर born smart, it's because the environment around them is smart. The, you know, you see the cartoon series, the जो कहते हैं the reasoning is very smart, problem solving is different. तो आजकल के बच्चों की अगर आपने बहुत अच्छी पेरेंटिंग करनी है और एक्टिव पेरेंटिंग करनी है, तो you have to be on their level, you have to give them reasons instead या of those या temporary things. You know, you don't have to use them, because वो तो हमारे तो दीन में हजरत अली का भी कॉल है ना कि भाई हर मतलब जो आपका तरीका है वो आप अपने बच्चों पे मत आजमाओ, बिकॉज आपके और उनके दौर में फर्क है। एंड फर्क है, बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। द होल आइडिया। ठीक है, आजकल के बच्चों का सोचने का तरीका अलग है। आजकल के छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं, 8वीं 7वीं क्लास के बच्चे, या मतलब 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, दे विल हैव डिफरेंट रीजनिंग। एंड या फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन अभी यहाँ पर जो है फ्रॉम लाइक लास्ट 2 years, जो बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी 2 years सून, जो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर के बच्चे होते हैं, उनके साथ जो मेरा अपना एक्सपोजर आया है उसमें मैं हैरान होती हूँ देखकर बच्चों को, देयर कॉन्फिडेंस, यू नो, और जो उनकी रीजनिंग होती लेकिन है। हमारा यहाँ पे हमारे सोसाइटी इसको एज अ थ्रेट लेती है। बच्चों का स्मार्ट होना कम उम्र से, बच्चों का अवेयर होना, इसको एज अ थ्रेट लेती है, विच इज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। चले मैं समझ सकती हूँ पेरेंट्स का ये फियर कि हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, वो जा चुकी हैं कहीं ना बिल्कुल कहीं। बहुत सारा कंट्रोल, हम वो चीज कंट्रोल करने की कोशिश करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज के जमाने में भी लड़कियों को मेंसेस का तब पता चलता है जब उनको खुद शुरू हो जाता है, ट्रू उनको ट्रू, बताया नहीं जाता। बिल्कुल आज बिल्कुल 2020 में अब तक हम यहाँ खड़े हैं फ्रॉम अ वेरी, अभी मैं लोअर सोसाइटी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं मिडिल बिल्कुल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल अभी तक, बिकॉज आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, एंड अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता। नहीं पता। लड़कियों को छोड़ो, मैं तो कहती हूँ लड़कों को भी पता होना चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक केयर। One day he is not going to be just your son, he is going to be a husband, he is going to be a father. You need to एग्जैक्ट train them, instead of just being a better son, you need to train them a better husband and a better father. हम बिल्कुल एंड सेम एज फॉर चिल्ड्रन, हमारे यहाँ ना लड़की को, मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, आज भी एक लड़की को इसलिए रेस किया जाता है ताकि वो एक खूबसूरत
पीस बन जाए जिसको रिश्ते ज्यादा मिल जाए, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो एजुकेशन हो। डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि फिर रिश्ते ज्यादा आएंगे, पर गोरी स्किन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रिश्ते ज्यादा आएंगे, स्लिम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रिश्ते ज्यादा आएंगे। यानी कि वी आर ट्रेनिंग आवर डॉटर्स टू बी molded in a way that others like them. It's not important if they like themselves or not, if they like their body or not, if they like their skin or not. Again, कहाँ माँ बनने की ट्रेनिंग हुई, कहाँ एक अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग हुई? ये दोनों के साथ हो रहा है, लड़के और लड़कियों के। एंड आई रिमेम्बर यू पोस्टेड रिसेंटली अ पोस्ट जिसपे सबने इतनी बात की, मगर किसी ने कोर अंडरस्टैंडिंग नहीं समझा कि वाई, अगर किसी कोई ये देख रहा है उसको पता नहीं। हमारा ने कोई, आई थिंक यू सॉ पोस्ट जिसमें ये लिखा हुआ था कि अभी क्वारंटीन के जमाने में ये अच्छा टाइम है कि हम अपनी बच्चियों को खाना पकाना और घर के काम सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। उस पोस्ट पे काफी बैकलैश हुआ था। कैन यू हियर मी तुबा? चले, आई थिंक तुबा का इंटरनेट इश्यू कर रहा है। मगर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट, यस, रिसेंटली आई पोस्टेड ऑन माय वॉल एंड ऑन डिफरेंट जो एक वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप्स होते हैं, देयर वाज अ पोस्ट, एक आर्टिकल छपा था, वेरी वेल नोन न्यूज़पेपर, लास्ट संडे, और उसमें यही कहा गया था कि बिकॉज दिस इज द हाई टाइम जिसमें आप अपनी बच्चियों को घर के काम और इन सारी चीजों में लगाएं। तो उसमें मेरा वर्डिक्ट था वो ये था कि वाई ओनली योर बच्चियां, वाई नॉट योर बच्चे? बिकॉज जो आजकल का टाइम है उसमें आपकी जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख रही हैं, और जो हमारे मुल्क की और दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, आई एम श्योर विद इन द टाइम ऑफ 20 years और 25 years और 15 years, जो लड़कियां होंगी दे विल बी मोर लाइकली टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क, ताकि एक आप अच्छी जो है ना जिंदगी गुजार सके। उसके लिए वो जरूरी हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा। तो मेरा ये बिलीव है, बिकॉज मी बीइंग अ वर्किंग वुमेन लिविंग इन अ कंट्री जहां पर जो डोमेस्टिक हेल्प है जो वो इतनी मतलब रीजन नहीं, इट्स नॉट अफोर्डेबल, और इवन वर्क लुकिंग इनटू पाकिस्तानी कल्चर, आजकल औरतें और मर्द दोनों काम करते हैं। तो उसमें आई थिंक इस सारे टाइम में जानते हुए कि वाकई अभी वक्त बदल रहा है और जो है बिल्कुल लड़कियों को भी नौकरी करनी पड़ेगी और घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसमें अगर आप अभी भी अपने बेटों को नहीं सिखाएंगे कि बेटा घर की सफाई कैसे करते हैं, या खाना कैसे पकाते हैं, या हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने लिए कैसे पकाओगे, खुद को कैसे पालोगे, तो दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू थिंक अबाउट। क्योंकि कल को जो लड़की होगी वो काम पे जाएगी, या काम पे भी जाएगी, कमाएगी भी, घर आएगी, आपके बेटे का ख्याल भी करेगी, उसको कहते हैं ना स्पून फीड भी करेगी, उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी करेगी। तो डेफिनेटली थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। और उस आर्टिकल की फनी बात ये थी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ससुराल जाके काम करना पड़ रहा है तो उन पे बहुत जुल्म हो रहा है, और इसी की वजह से जो है बहुत सारे घर टूट रहे हैं। And I think my verdict on that, or my belief, of course, everyone have their own perspective, everyone have their own belief, but I believe कि अगर एक लड़की अपने ससुराल जा रही है और stepping into a new family, she is not going there to take care of the family, she is going there to start her own new family sort of thing. ठीक है, it's good, आपकी parenting अच्छी है, आपकी तरबियत अच्छी है, तो which is very fine. I'm okay with it. I'm personally a kind of person, alhamdulillah, कि I take care of my in-laws whenever I'm in Pakistan, और I try my best to be, you know, हर तरह से उनका ख्याल रखना and all. And I'm not saying कि you don't have to do it sort of thing. I'm just saying कि सिर्फ इस वजह से जो है एक औरत का घर उजाड़ देना कि बिकॉज शी इज नॉट केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली इज रॉन्ग। वी ऑल आर इंडिविजुअल्स एंड वी ऑल शुड बी केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बीइंग अ बॉय और बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन। You know, it's for both of us, and I'm not in a favor कि खाली लड़कों को सिखाओ और लड़कियों को ना सिखाओ। Of course, आप अपनी बेटियों को भी सिखाओ, क्योंकि आपकी बेटियों को भी पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने कैसे अपना ख्याल रखना है, उन्होंने कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, you know. But on the other hand, at the same time, आप अपने बेटे को भी सिखाओ। तो ये वो पूरी जो और हमारा यहाँ पे आई वुड से समथिंग कि मैं लड़कियां जो ससुराल में जाके काम करती हैं, चाहे वो जॉब के साथ करें या जॉब के बगैर करें, खाना बना रही हैं, घर की सफाई कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, इसलिए नहीं कि वो औरत है, इसलिए कि वो उनका घर है, वो बिल्कुल करना चाहती हैं बिल्कुल बिल्कुल। ये। और पता है हमारा रिलीजन, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि भाई ये हम अपने रिलीजन को पढ़ते नहीं है। हमारे रिलीजन ने हमारी वुमेन, इवन अ मदर कैन आस्क फॉर मनी इफ शी इज फीडिंग द बेबी।
बिल्कुल। अगर वो अपना मिल्क अपने बच्चे को दे रही है, शी कैन आस्क फॉर मनी, ये हमारा इस्लामिक राइट है। दिस मच वैल्यू इज गिवन टू मदरहुड, दिस मच इज वैल्यू टू गिवन टू अ गर्ल, और हम उसको बचपन से मोलेस्ट करते हैं इमोशनली, फिजिकली। बच्चों को, लड़कों को तो चलो ये बात अलग है कि हम घरों में घर के काम करना सिखाना है या ये करना है। हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही, मेरी कहाँ तक आवाज आई है हमारा? कि लड़कों को काम करना सिखाना है। और उसके अलावा हम, मैं ये कह रही हूँ कि हम सिर्फ लड़कियों को बचपन से डिस्ट्रॉय नहीं करते इमोशनली, हम लड़कों को करते हैं। हम लड़कों को कहते हैं रोना मत, बिल्कुल। मेल्ट डाउन नहीं करो, तुम कम बोलो, लड़कों को कम बोलना अच्छा लग कि सही है, लड़कियां तो बातूनी भी चलेंगी। या फिर लड़कों की एक ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए ज्यादा, तुम क्यों किचन में खड़े हो तो तुम्हारे लिए करके लेके आती हो, ये सारी चीजें। हम, तुम्हारी बहन है ना, कभी आपने दोनों को इक्वली करना सिखाया है? नहीं। हम बचपन से लड़कों की इमोशनल राइट्स भी छीन लेते हैं, सिर्फ लड़कियों के नहीं। हम समझते हैं अगर एक माचो मैन है और वो रोता नहीं है तब वो मर्द है, ऐसा नहीं है। हमें लड़कों को भी इजाजत देनी है टू एक्सप्रेस, टू बी एक्सप्रेसिव। हमारे यहाँ मर्द, यहाँ पे शादियां, रिलेशनशिप्स क्यों नहीं सस्टेन करती? क्योंकि लड़कियां बोलती हैं मेरा हस्बैंड इमोशनली मुझ में इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको वो मौका नहीं दिया गया बचपन में, उसको ट्रेन किया गया कि एज अ मेल, एज अ लड़का, यू कैन नॉट एक्सप्रेस, यू कैन नॉट बी इमोशनल। ट्रू दैट। और यहाँ पे आके बात आती है कि क्यों वो इमोशनली ग्रो नहीं करते और हम ओवर इमोशनल क्यों ग्रो कर जाते हैं, ट्रू। ट्रू। और फिर इन दी एंड घर सफर करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अगेन ये तो मतलब आई थिंक ये तो इतनी सारी चीजें हैं, अगर हम इस पे या बात करने पर आए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम आई थिंक एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ हो गए। हमारे बिल्कुल डाइवर्ट हो क्योंकि गया। यहाँ पे भी तो इमोशनल वेलबींग है ना यार, यहाँ पे बिल्कुल। भी इमोशनलिटी आ गई और हम लोग एज पेरेंट्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, आई एग्री, आई टोटली एग्री ऑन दैट। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा हम इसको रैप अप करते हैं। अच्छा, हाउ, अगर आपके पास आपका बच्चा आ रहा है, इफ द चाइल्ड इज कन्फ्रंटिंग यू अबाउट समथिंग, या हाउ टू दैट इज समथिंग, कुछ मदर जो वालिदैन है उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा था, तो आई थिंक दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म जिसपे मैं इस क्वेश्चन को केटर करूं। तो अगर आपके पास कोई बच्चा आ रहा है और आपको बता रहा है कि he or she is not comfortable with certain people or in certain situations, or going to maybe, or with certain teachers even, because recently we had this very massive, I think, जो एक स्कैंडल उठा है एक बड़े वेल नोन स्कूल का लाहौर में। तो आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, सबसे पहले तो जो है, जब भी आपका बच्चा आपके पास आए तो कभी भी जो है ना, डायरेक्ट सवाल आप बच्चे से मत करें, ठीक है? कहते हैं ना, लीडिंग क्वेश्चन, नेवर आस्क लीडिंग क्वेश्चन इफ अ चाइल्ड कम फॉरवर्ड टू कन्फ्रंट समथिंग। तुम कोई एग्जाम्पल दे सकती हो हमारा लीडिंग क्वेश्चन की, ताकि पेरेंट्स डिस्क्रिमिनेट कर सकें? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के अगर एक बच्चा आपके पास आया और वो कह रहा है कि जो है, जो वो मेरी दोस्त है ना अम्मी, जिनके घर में गया था, तो जो उसके बड़े भाई है ना, वो ना मतलब मुझे ना बुरे तरीके से ना टच करते हैं ना, वो मतलब मुझे अपनी लैप पे बिठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, या उसके वालिद करते हैं। हम जस्ट क्रिएटिंग अ सिनेरियो। तो उसमें डू नॉट आस्क कि अच्छा लैप कब हुआ, ऐसे कब बिठाया उन्होंने, क्यों बिठाया उन्होंने, नो, कभी भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने। लेट द चाइल्ड एक्सप्लेन, एक्सप्रेस। जब आपको लगे कि बच्चे ने सब कुछ आपको बता दिया है, कुछ भी, अच्छा तुमने खुद गए थे उनके पास या वो तुम्हारे पास आए थे, आप, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डिटेल्स लें, लेकिन जब एक बच्चा आपसे कुछ कन्फ्रंट कर रहा होता है तो कोशिश करें कि आप सिर्फ उसकी सुने। डू नॉट या इंटरव्यू, डू नॉट या आस्क क्वेश्चंस कि जो वो सोचने पे मजबूर हो जाए, फिर उसको लगे कि ये मैं बताऊं, ये मैं ना बताऊं, यूं मैं या करूं, अच्छा ये मतलब, क्योंकि ऑफ कोर्स किड्स आर वेरी सेंसिटिव ना, और एक बहुत सेंसिटिव सी चीज होती है। इवन आई एम नॉट, इट्स नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, अगर आपके पास कोई बड़ा भी आता है, आपकी अपनी बहन आए, या आपका इवन आपकी वाइफ आए आपके पास, आपका हस्बैंड आए, वो आपको बोले कि आई हैव अ बॉस एंड माय बॉस इज वेरी दिस एंड दैट, तो नेवर फौरन से आप उससे सवाल जवाब मत करें, डायरेक्ट क्वेश्चन मत करें।
लेट द चाइल्ड और एन इंडिविजुअल एक्सप्लेन देमसेल्फ। और जब भी आप बच्चे से बात करें या एक इंडिविजुअल से बात करें जो आपसे किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज यू कैन। ट्राई मतलब इन टर्म्स ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस, बिकॉज सम पीपल आर really, I don't know, they're not really good with their facial expressions. Like they will have the smile on their face, or maybe they will just like, have those disgusting expressions and all that stuff. So be very consistent in that situation. Of course, usually facial expression is अगर मैं भी बात कर रही हूँ तो I'm having a facial expression, so that is different because that shows कि I'm फिजिकली इमोशनली देयर। मगर अगर आप एक बच्चा या एक इंडिविजुअल आपसे कॉन्फ्रंट कर रहा है तो फेशियल एक्सप्रेशंस कैन बी बिट ट्रिगरिंग, कैन बी बिट डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन परसीव के आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपको मैं मतलब मेरी बात गलत लग रही है, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रही हूँ। Try to be as neutral as you can. Try to be non-judgmental. Do not judge whatever it is. I know sometimes it's really really hard because हमारे यहाँ judging people is very easy. Do not judge the child. Do not judge an individual. बिल्कुल भी, ठीक है। और जब आप एक दफा बात सुन ले, जब आपको बात समझ आ जाए और आपको लगे कि ओके देयर आर थिंग्स व्हिच आई नीड टू आस्क, ऑलवेज आस्क फॉर अगेन द कंसेंट के ओके आपने मुझे बताया बेटा, या बहन तुमने मुझे बताया, भाई तुमने मुझे बताया, जिससे भी आपकी बात हुई है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा मेरे कुछ सवाल हैं, इफ यू आर ओके कैन आई आस्क दोस क्वेश्चंस? बेटा आई हैव फ्यू क्वेश्चन। इवन इफ मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका बेटा 5 साल का, वो आपको बता रहा है 6 साल का है, तो अगर आप उससे पूछें, आप उसको कैसे पता लगेगा कंसेंट का? नहीं, आप उससे पूछे कि आर यू, डू यू थिंक देयर आर फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू आस्क, डू यू थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट राइट नाउ? मैं आपसे कुछ पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं बेटा बिल्कुल समझ रही हूँ आप जो बात कह रहे हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, एंड बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल आपसे कह रहे हो ऐसा हुआ होगा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं? देयर आर फ्यू क्वेश्चन, देयर आर फ्यू थिंग्स आई नीड टू आस्क, कैन आई आस्क यू दोस क्वेश्चंस? ठीक है, तो बी वेरी वेरी, देखिए इट यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, इट नीड्स अ लॉट ऑफ courage. I know it needs a lot of courage to be there and to, of course, to have those sort of conversations. Again, when it comes to physical and verbal abuse, तो उसमें भी अगर आपका बच्चा आपको बता रहा है कि अब्बू ने मुझे गालियां दी थी और आपके सामने दी हैं, या मेरे को अम्मी ने ऐसे बोला है, या अब्बू ने मुझे मारा है, या अम्मी ने मुझे मारा है, तो try to listen to your child, उसकी क्या सोच है। The more you will communicate with your children, in the better it will be. कम्युनिकेशन इज द की। जितना आप बच्चे के साथ बात करोगे ना, उतना बच्चे को पता लगेगा कि यू आर देयर फॉर दैट चाइल्ड, ठीक है, कि आप वो उसकी सुनने के लिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग, ऑफ कोर्स, एंड अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट बाउंड्रीज एज वेल एट द सेम टाइम। इट्स नॉट लाइक और वो जो हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चे का दोस्त हूँ, या मैं तो अपनी बेटी की सहेली हूँ, या बेटे की सहेली हूँ। आई डोंट बिलीव ऑन दैट पर्सनली। मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन यू आर अ parent and you have a child, you can't be friends. You can have those secure relationship, you can have secure attachments, ठीक है, जहां पर आपका बच्चा आपके पास आए और उसको पता हो कि you will be there for that child, ठीक है, that thing. But अगेन अगर आप बिल्कुल ही अपने बच्चे के दोस्त बन जाओगे, तो देन यू वोंट बी एबल टू सेट बाउंड्रीज विद योर चाइल्ड। तब आपके बच्चे को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मम्मा ने कहा है कि नहीं, तो इसका मतलब नहीं, और आपके बच्चों को वो सेंस ऑफ वो नहीं होगा कि यू आर द अथॉरिटी, एंड ही हैज टू लिसन टू यू, एंड यू आर द वन ही हैज टू ट्रस्ट ऑन। तो ये वाली जो छोटी छोटी चीजें हैं, आई नो वी हैव टू एक्सप्लोर अ बिट मोर ऑन दोस थिंग्स, बट इन सारी चीजों पे parent to parent, parent child, it's completely there. मगर जो हमारा का जो मेन पॉइंट है कि there should be a medium of communication, either you are friendly or not friendly, even बल्कि हमारा, मैंने बहुत सारी ऐसी parent child relationship देखी है जिसमें parents are extremely authoritative but still children trust them, and I have seen parents being completely friendly and still children trust them. तो आई थिंक ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें पेरेंट्स को मुश्किल है या नहीं है, करना है, क्योंकि हमने जब बच्चा पैदा किया है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम दैट सेफर एनवायरनमेंट। हमारा, जैसे तुमने ये कहा ना कि बच्चा हमारे पास आए तो हमने कैसे डील करना है, तो तब हुआ जब उसके साथ कुछ हुआ, कुछ ना होते हुए भी बच्चों को हम कैसे एक्सप्लेन करें कि ये सिचुएशन हो कभी तो कैसे करना है, और व्हाट डेंजरस सिचुएशन अगर वो हो तो क्या करना है। प्लीज
बहुत एक्सट्रीम पे भी चले जाएं तो बच्चा बोले अब्बू ने तो कहा था कि अगर कोई गोद में बिठाए तो नहीं बैठो, हाथ पकड़ के चलने को तो कहा था, ठीक है। बिल्कुल। तो आई थिंक अगेन इसका हमने थोड़ा सा पहले कवर किया था। आई रिपीट दोज थिंग्स कि बिगिनिंग से ही, स्टार्ट से ही, जब आप बच्चे का पैम्पर चेंज करते हो, बच्चा 2-2.5 साल का है, 3 साल का, आप बच्चे को वॉशरूम लेके जाते हो, स्टार्ट ट्रेनिंग द चाइल्ड। अगर आप माँ हैं या वालिद है कि बेटा मामा के अलावा या बाबा के अलावा नो वन कैन टेक यू टू द बाथरूम, इधर इट्स बीइंग योर पुप्पो, योर खाला, योर नानी, ठीक है, आपको कोई नहीं लेके जा। नाना नानी का डिफरेंट होता है आई थिंक, या दादा दादी का डिफरेंट होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन, जो कहता है आपका प्राइमरी सर्कल। लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि बेटा दिस इज नो वन शुड सी योर प्राइवेट पार्ट्स, नो वन शुड टच यू। एंड अगेन जब आपको लगे कि आपका बच्चा 5-6 साल का हो रहा है, तो स्टार्ट टेलिंग देम अबाउट द गुड टच एंड बैड टच, कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल। अगेन हैविंग दैट कंसेंट थिंग कि बेटा मामा के अलावा आपको कोई किस नहीं करेगा, या बाबा के अलावा आपको कोई किस नहीं करेगा, बेटा कैन आई हग यू, कैन आई किस यू। ये सारी चीजें अगर आप अपने बच्चे में इंट्रोड्यूस खुद से करेंगे तो बच्चे को पता होगा। जब उसको बिना कोई उसकी परमिशन के हक करेगा या किस करेगा या अपने पास बिठाएगा, तो वो आकर लाजमी आपसे बताएगा कि मामा मुझे अच्छा नहीं लगा, या बाबा मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे किस किया या उसने मुझे हक किया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बिगिनिंग से अपने बच्चों में इंट्रोड्यूस करानी होती है, बहुत बिगिनिंग से बताना होता है कि बेटा दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट, this is comfortable, this is not comfortable. For some children maybe, again it's person to person, it depends on individual. For some children are very confident, some children are very outspoken, okay, for them it's fine if someone will hug them. It's if they're fine with it, it's okay, because it's just like hugging and stuff. Some children, I know so many, like in my own family, some children are very different. They don't like talking to more, like, or hugging strangers or hugging even relatives. So we have to respect कि उनकी क्या एक पर्सनल कंफर्ट लेवल है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा, आप भी उसको बार बार हक कर रहे हो, तो ही इज नॉट और शी इज नॉट कंफर्टेबल, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू शो योर लव बार बार गले लगा कर ही, या किस कर कर ही, या बहुत ज्यादा चिपक चिपका कर ही, ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई थिंक द आइडियल थिंग इज टू स्टार्ट हैविंग दोज कंसेंट थिंग, कि उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए कॉन्सेंट का। और जो है अगेन जब बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं या बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की एज में, आपको पता है कि आपकी बच्ची 9 साल की हो गई है या आपका बेटा 9-10 साल का हो गया है, तो दैट इज द ट्रिकी पार्ट, हाउ यू हैव टू टेल देम कि बेटा वी आर इन दैट एज नाउ, योर बॉडी विल एक्सपीरियंस डिफरेंट चेंजेस, और बेटा you are a girl now, you're growing up, so you gotta be a bit more careful बेटा, you're growing up, और जो है ना अब हमें we will see, हम ज्यादा केयरफुल होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम जो है, मतलब जो भी आपका अपना सिनेरियो, कि हम या चाचू या मामा या खालू या अंकल आंटियां या रिलेटिव्स, कि बेटा आपने अननेसेसरी किसी को ज्यादा जो है ना, आपने खुद भी इनिशिएट नहीं करना, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपने आके हमें बताना है, इस तरह की। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर ओन कल्चर, हाउ लिबरल योर फैमिली इज। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली काफी लिबरल है, इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। अगेन इट्स वेरी फैमिली डिपेंडेंट और कल्चरल डिपेंडेंट थिंग। अगर मैं अपनी फैमिली का देखूं, तो हमारी फैमिली में मतलब इट्स लाइक अ बिट वेरी, यू कांट हग ताया चाचा मामा, और सो एंड व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब मे बी अगर मेरे बच्चे होंगे तो आई माइट हैव दोज बाउंड्रीज कि बेटा आपने अननेसेसरीली किसी को हग नहीं करना है, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। इज्जत और रिस्पेक्ट या मोहब्बत हैज नथिंग टू डू विद गेटिंग फिजिकली, I don't know. Yeah. It's very personal thing. It's very family to family thing. It depends आपकी क्या अपनी एक cultural values हैं, या आपकी अपनी क्या family values हैं, या from religious perspective आप क्या सोचते हो। मगर अगर मैं अपनी example दूंगी, तो I might have, because हमने हमारी सारी जिंदगी we had a very strict boundaries in terms of cousins. We never used to get very close to our cousins. जैसे होता है ना कि मतलब normally, which I absolutely respect that. We never had any I don't know, like male friends and stuff, जिसे कहते हैं ना, मतलब normally जो जिगर्स होते हैं या कूल होता है, हम लोगों का वैसा नहीं था, which I totally understand, because हम जिस फैमिली से मैं आती हूँ या जो हमारा ब्रॉटअप था वो डिफरेंट था, but I totally understand why I have friends with जिनकी फैमिलीज were quite liberal, quite friendly, उनके यहाँ इन चीजों को उस तरीके से नहीं देखा जाता, and I totally respect that, and they respect I have been brought up. तो I think आपकी अपनी फैमिली वैल्यूज को देखते हुए, but again you have to see the environment as well. अच्छा, और एक और चीज जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक मुअम्मा है, recently I have been talking to few
because I provide this online counseling, so I've been in touch with few teenagers. तो I think एक जो चीज बहुत confusing होती है वो ये होती है कि आपकी इन family values different हो और जो है आपकी जो एक social picture है वो बिल्कुल different है. मतलब आपके जो वालिद हैं या आपकी जो वालिदा हैं, they are very conservative when it comes to you. कि जो है बेटा जो है दुपट्टा लो, दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तुम्हारी कमीज क्यों बड़ी है, तुम्हारे चाक क्यों ऐसे हैं, फलाना, मतलब जैसे होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट. और जब आप सोशली किसी गैदरिंग में हो तो देन पेरेंट्स आर ट्राइंग और एक्टिंग वेरी कूल कि नहीं नहीं बेटा इट्स फाइन, जस्ट एक जो सोशल पिक्चर होती है कि नहीं वी आर नॉट कंजर्वेटिव, वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट. आई थिंक दैट इज समथिंग वी रियली यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट कि इफ अगेन इफ यू जब भी जो भी आपको मैसेज आपके बच्चे को देना है, be very straightforward and consistent. Yeah. Always answer their queries. Don't assume कि आपने जो explain कर दिया अपने लिहाज से वो उससे समझ लिया. हम लोग जो ये कहते हैं हमारे बच्चे समझते नहीं, वो इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम उनको समझा नहीं रहे उनके लेवल पे. बिल्कुल. और अगेन तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने बच्चे को बेटे को बोल रही हो या बेटी को बोल रही हो कि बेटा आप 12 साल की हो और आप कोशिश करो कि आप ज्यादा लड़कों के साथ बाहर मत जाओ, तो मेक श्योर कि आप उसको बोलो कि बेटा आप कजन्स के साथ भी ज्यादा फ्री मत हो. मतलब एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए. और अगर आपको मतलब कि जो भी वैल्यूज हैं या जो भी रूल्स हैं दैट शुड बी कंसिस्टेंट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आई जस्ट नीड टू मेंशन वन थिंग, जो भी देख रहे हैं कि हमारा का मतलब ये नहीं है कि आप अगर बच्चों को ये ट्रेन करें कि वो लड़की हैं तो लड़कों के साथ ना घूमें या लड़के हैं तो लड़कियों के साथ ना घूमें तो बेहतर है. शी इज ट्राइंग टू से कि कंसिस्टेंसी इन योर रूल्स एंड योर रेगुलेशंस इन द हाउस, दैट इज इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. एंड एज आई सेड बिफोर, जो भी आपकी अपनी प्राइमरी जो आपका जो अपना स्ट्रक्चर है, आपका हाउस होल्ड है, उसकी जो वैल्यूज है, उसके जो रूल्स है, उसकी बेसिस पर मैं कह रही हूँ कि मतलब ऑफ कोर्स इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली और आपके डिफरेंट वो है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन माइंडेड फैमिली दैट इज डिफरेंट, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली दैट इज डिफरेंट. ठीक है. तो जो भी आपका अपना प्राइमरी सेटअप है उसके हिसाब से आपके जो भी रूल हैं, ट्राई टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद देम. डू नॉट कंफ्यूज योर चिल्ड्रन, बिकॉज रिसेंटली जिन टीनेजर्स के साथ मैंने काम किया है उसमें बहुत ज्यादा जो एक प्रॉब्लमेटिक और कंफ्यूजन होती है वो बच्चों को ये होती है. और जब वो बीइंग अ थेरेपिस्ट आपसे सवाल पूछेंगे कि अब बाबा ये बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना, बट बाबा जो है ना वो खुद ये करते हैं. और बाबा जब हम कहीं पार्टीज में जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि जींस पहन लो, और जब मैं घर पर होती हूँ तो बाबा को होता है कि मैं जींसा पहनूं. जो इस तरह की जो कंफ्यूजन है वो मत डालें अपने बच्चों के दिमाग में. इस तरह आई हैड रिसेंटली स्पोकन टू अ गर्ल, मेरी क्लाइंट है, तो उनका ये था कि वो जो है फादर है ही स्मोकिंग, अगर अब्बा स्मोक कर रहे हैं और अब बेटी है 18 साल की है 20 साल की, इफ शी विल स्मोक तो अब्बा विल बी लाइक बेटा तुम क्यों स्मोक कर रही हो. नो, मगर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी बेटी भी स्मोकिंग करेगी ना. अगर आप उसको बता रहे हो बेटा नहीं नहीं नुकसानदेह, तुमने नहीं करना, तुम लड़की, नो दैट इज रॉन्ग. इफ यू And children learn more by seeing than listening. Exactly. And if you, being an individual, being a 46 or 47-year-old individual, or being a 50-year-old man or 30-year-old man, if you cannot control yourself, you by, even though you know कि भाई जो cigarette नोशी है वो नुकसानदेह है, तो you cannot stop your son or you cannot stop your daughter कि बेटा वो ऐसा ना करे. Of course, it's absolutely normal for them. अगर आप being a parent काम के बाद अपने दोस्तों के साथ सोशलाइज करने जाते हो और आप अपने बेटे को बोल रहे हो कि बेटा नहीं तुमने तो 8 बजे ही घर आना है, तो वो कैसे सुनेगा आपकी बात, वो कैसे रिलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो आई थिंक ये सारी चीजें अगर अगेन अगर आपके कोई भी रूल्स हैं या आपके जो भी प्राइमरी फैमिली वैल्यूज हैं या स्ट्रक्चर है, आप जो भी चाहते हो कि आपका बच्चा करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप यू योरसेल्फ डू दोस थिंग्स, यू योरसेल्फ प्रेजेंट. इसका इमोशनल लेवल पे इतना बड़ा असर होता है, ये लोग बहुत कैजुअल लेते हैं इस बात को, बट जो बच्चों की इमोशनल वेलबींग डेवलप हो रही होती है ना, सेल्फ रेगुलेशन, वो इन्हीं सब चीजों से बनती है. वो यही सब देख के, यही सब चीजें, यही तो ट्रायल एंड एरर है. अब एक बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर कैसे आएगी? इन सब से आएगी. एक बच्चे के अंदर समझ के सही क्या है गलत क्या है, इन्हीं सब से आएगी. बिल्कुल बिल्कुल. दैट्स अ थिंग. तो जो भी आपकी रूल्स हैं, ये वैल्यूज हैं, बी कंसिस्टेंट एंड बी ट्रांसपेरेंट. बी ट्रांसपेरेंट अगेन. और अगर हम इसको लिंक करें अब्यूज के साथ, कमिंग टुवर्ड्स दिस वर्बल अब्यूज, हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ी चीज है कि पेरेंट्स दे थिंक इट्स फाइन कि वो गालन गलोच करेंगे, बच्चों को गुस्सा करेंगे, बच्चों पे टेंट्रम्स शो करेंगे, बच्चों से नाराज हो जाएंगे, बच्चों को इमोशनली एक बहुत ज्यादा
एक उसमें चले जाएंगे, कहते हैं ना इमोशनल ट्रॉमा लिटरली इंड्यूस कर देंगे बच्चे के अंदर, या बच्चे को थप्पड़ मारेंगे या बच्चे के सामने चीजें फेंकेंगे, एंड देन अगर बच्चा वही चीजें करता है तो फिर उनको होता है कि हाय अल्लाह मेरा बच्चा तो ऐसे कर रहा है, हाय अल्लाह अब मैं क्या करूँ, ये तो बहुत बदतमीज है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, और देखो इसने गाली दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने गाली दी, यू नो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मगर अगेन अगर इफ यू आर अब्यूजिव योर टुवर्ड्स योर चाइल्ड इस सारी उम्र में, जब वो 4 साल का था, 5 साल का था, 8 साल का था, 10 साल का था, तो व्हेन द चाइल्ड विल स्टेप इनटू टीनेजर और द लेट टीनेज 18-19 साल में जाके बच्चा वो सारी चीजें करेगा, एंड देन यू हैव नो राइट टू कंप्लेन, तब आप बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर सकते ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रही है, बिकॉज दिस इज व्हाट शी और ही हैज लर्न। ठीक है, तो वो वही सारी चीजें करेगा। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आजकल का जो अगेन टाइम है वो बहुत डिफरेंट है। ऑफ कोर्स हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे, एक बिल्कुल फर्मा बरदार हो, सही चीजें करें। मगर अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं अपने बच्चों से तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ देयर जर्नी, यू हैव टू बी देयर फॉर देम सो दैट वो ये चीजें Yeah. आपसे देख सके, सीख सके, क्योंकि आजकल एक्सटर्नल इतना कुछ है, इतना एक्सपोजर है कि जो है इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आता। एक तरफ वो देख रहे हैं फ्रेंड सीरीज या कोई भी इंटरनेशनल सीरीज जहाँ पे लड़कियां जो है वो स्कर्ट पहन रही हैं, या जो लड़के हैं दे आर वेरी कूल, यू नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन हैविंग अ रिलेशनशिप एंड स्टफ। और अगर आपके और आपके बच्चे के बीच में वो बॉन्ड ही नहीं है, वो सिक्योर रिलेशनशिप ही नहीं है जिसमें आप बता सके कि बेटा दैट इज डिफरेंट, आवर कल्चर इज डिफरेंट, या हमारी एक Yeah. पर्टिकुलर फैमिली की पंजाबी सिंधी या जो भी आपकी फैमिली है उर्दू स्पीकिंग या बीइंग अ मुस्लिम हमारी डिफरेंट वैल्यूज है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, अगर आपका वो बॉन्ड ही नहीं कि आप एक्सप्लेन कर सकेंगे तो ऑफ कोर्स द चाइल्ड विल बी कंफ्यूज कि व्हाई इट इज Yeah. ओके फॉर एक्स वाई जी टू डू इट एंड व्हाई इट्स नॉट ओके फॉर मी। Yeah. For me. Yeah. Yeah. बिल्कुल। और ये सारी फिर तो चीजें वहाँ उसके अंदर ये सेंस आ जाएगा कि ये एक मेरा राइट है जो मुझसे मेरे माँ बाप ने छीन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी चीजें जो है दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती हैं। अच्छा, अगर अब कमिंग बैक टुवर्ड्स अब्यूज और जो हमारा आज का टॉपिक है तुबा, वी हैव स्पोकन अबाउट टाइप्स ऑफ अब्यूज, वी हैव स्पोकन अबाउट हाउ इफ योर चाइल्ड कम टू यू तो आपने कैसे जो है ना डील करना है उसको। अब हम बात करते हैं जो साइड इफेक्ट्स होते हैं अब्यूज के, थोड़ा डिटेल में, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिजिकल अब्यूजेस या वर्बल और इमोशनल अब्यूजेस जो होते हैं या सेक्सुअल अब्यूजेस होते हैं, दे हैव एक्यूट, दे आर लिंक विद एक्यूट जो स्ट्रेस होती है उससे। ठीक है, और दे आर प्रोलॉन्ग, जो आपके स्ट्रेसेस होते हैं ना, अगर आप एक स्टडीज उठाएं तो जितनी भी प्रोलॉन्ग स्ट्रेसेस हैं दे आर समहाउ लिंक विद योर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, विद योर चाइल्डहुड ट्रॉमास। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं दे कम अंडर द जमरा, क्या कहते हैं कि वो एक ट्रॉमे के जमरे में आती हैं। तो अगर हम इनके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो देयर आर सो मेनी इमोशनल साइड इफेक्ट्स, देयर आर सो मेनी न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स एंड देयर आर सो मेनी फिजिकल साइड इफेक्ट्स। अगर I'm just going to start with an emotional side effects या इमोशनल साइड इफेक्ट्स की कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी बातें हैं, उसमें जो फेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, एंड सारे जो अब्यूज हैं दे कम अंडर द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड ट्रॉमास में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो अटैचमेंट इश्यूज होते हैं, नॉट हैविंग दैट, और जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक विद ऑल दीज जो हमने अभी डिस्कस की थी बातें, अब्यूजिव एक्सपीरियंसेस। अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ की तो बहुत सारे रिसर्चेस हैव प्रूवन दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली लिंक्ड जो है जो कैंसर और अल्सर और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जो आपके हार्ट डिजीजेस होते हैं, जो दिल के मसले होते हैं, वो भी डायरेक्टली लिंक होते हैं आपकी स्ट्रेसेस से, आपकी जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होती है उससे। इसके अलावा फर्टिलिटी इश्यूज जो होते हैं बहुत ज्यादा औरतों में और मर्दों में जो है, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली लिंक विद ऑल योर चाइल्डहुड ट्रॉमास, और जो आपके जो चाइल्डहुड स्ट्रेसर्स हैं उनसे। और इसके अलावा ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि द चिल्ड्रन हु हैव faced any form of abuse, being it physical abuse, verbal abuse, neglect, emotional abuse or sexual abuse, have a shorter lifespan. उनकी जो डेथ होती है that is more likely to happen in early ages.
तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी नहीं है कि हम इन चीजों पर काम करें जस्ट बिकॉज फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ एंड बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों की इंटेलेक्चुअल की और एक इंटेलिजेंस की, तो दैट इज ऑल्सो प्रूवन साइंटिफिकली कि जो है अगर आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव रहा है, ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा है आपके एक्सपीरियंसेस, तो जो आपका इंटेलेक्चुअल है दैट विल बी लो, आपका जो मेमोरी होगा वो कमजोर होगी, आपकी जो याददाश्त होती है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे मतलब हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये चीजें, दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। I don't know, most of you might know, some of you might don't know, but I am certified addiction psychologist as well, addiction therapist. तो जब हम when I was studying addiction and addiction therapy and how addiction works, तो I was very surprised to know कि जो हम एडिक्शन क्यों करते हैं, why we get used to of any substance, तो that is directly linked with your traumas, that is directly linked with external stressors जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, that there is a direct link। इसीलिए जब हम मेरे पास कोई क्लाइंट आता है विद द प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन, तो हमारा जो मेन कोर होता है, जो हमारा स्टार्टअप होता है, वो हम इसी चीज से बात स्टार्ट करते हैं, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। इसी तरह तुबा, यू योरसेल्फ आर काउंसलर, यू नो दिस, इवन इन एनी थेरेप्यूटिक सेशंस, जब भी हमारे पास कोई आता है, हम करंट सिचुएशन, हमारे पास ज्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं वो आते अपने करंट एक्सपीरियंसेस लेकर हैं कि उनको जो अभी जो है मुझे बहुत डिप्रेशन है, ये बहुत परेशान हूं, और कोई एक इंसिडेंट होगा जो उनको लगता है कि ये रीजन है, मगर जितना आप एक्सप्लोर करते हो यू गेट टू नो कि नहीं, दीज the main reason behind those reactions or those feelings are linked with your childhood trauma, are linked with your childhood stresses, are linked with your those early fights you have seen, or that one incident जहां पर आपके अब्बा ने आपको बहुत मारा था, या that one incident जहां पर आपके अब्बा ने आपकी माँ को मारा था, या आपके दादा ने आपके अब्बा को मारा था, it could be anything। ठीक है। ये सारे फिजिकल और वर्बल एब्यूजेस जो होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई हैव पर्सनली been in a situation, I have dealt with someone जिसमें एक जो लड़की है, जो एक इंडिविजुअल है, उसका सेल्फ एस्टीम इसलिए डाउन था कि, या इसलिए वो था कि some when she was like maybe 9 years old or 10 years old, her father called her like, oh beta कि you look like you're looking like a prostitute sort of thing, like इस तरह के जो comments sometime आप जाने और अनजाने में दे देते हो, all these things cause a big problem। आप देखिए, पता है यहाँ मेरे पास एक क्लाइंट थी, आई रिमेम्बर, उसके साथ सिवियर उसकी टॉक्सिक पेरेंटल रिलेशनशिप थी, और वो जब मुझे बोलती थी कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन कि कितनी टॉक्सिक बातें उसको बचपन से बोली गई थी। तो वो कहती थी कि काश, मैं दुआ करती हूँ कि काश मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने मारा होता, वो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये जो बातें मेरे अंदर जो स्टक रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे उस इंस्टेंस में ये बोला। कभी कभी कुछ बच्चों के लिए ना छोटी छोटी बातें होती हैं कि किसी मेहमान के आगे डांट दिया, या बच्चों को कंपेयर किया मेरे बड़े भाई से, ये उनके साथ हमेशा रह जाती हैं, और फिर उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस सब अफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और अगेन फिर मैं, ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात की, ये ऑल दीज थिंग्स कम अंडर वर्बल, ये इमोशनल अब्यूज, वर्बल बट इमोशनल अब्यूज आई वुड से। आई हैव सीन पर्सनली, मैं बोलूंगी कि अपने सराउंडिंग में इस तरह के कमेंट्स है ना बच्चियों के बारे में, अल्लाह ये तो बिल्कुल अपने बाप पे चली गई, ऐसी काली है ना, ये बिल्कुल दांतों पे चली गई है, या देखो इसकी आंखें इतनी छोटी छोटी है तो अपनी खाला पे गई है, इस तरह की जो चीजें होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, बच्चे को तो पता ही नहीं चल रहा, बट नो 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 नो, दैट केस। ऑल द थिंग्स बच्चा सुनता है, प्रोसेस करता है, अभी वो छोटा है, वो खेल में लग जाएगा, ये लग जाएगी, so she might not even बॉदर के, मतलब उस वक्त वो खेला, लेकिन वो सारी चीजें बच्चे के अंदर रहेंगी। आई हैव पर्सनली सीन लड़कियां माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी, मगर व्हेन यू एक्सप्लोर देम, व्हेन यू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड उनका जो डिप्रेशन है, तो यू फील सरप्राइज कि उनको बचपन से बताया गया होता है कि तुम पतली बहुत ज्यादा हो, तुम्हारे दांत बहुत ऊंचे। आई पर्सनली माई सेल्फ बिलीव, मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी, तो आई हैव ऑलवेज बीन
ट्रोल्ड के भाई मेरे जो दांत हैं वो बहुत जो है वो आई डोंट नो दे आर लाइक थोड़ा सा बाहर को करके है, तो लोग मुझे कहते हैं तो इतना मत हंसा करो। इवन मेरी अपनी दोस्त हैं ऐसे मजाक मजाक में बोलेंगी तुम इतना मत हंसा। ओफ, ओफ, और मजे की बात यह है कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो सीरियस, अगर मैं नॉर्मल भी बैठी हूँ ना तो आई विल नॉट बी लाइक दिस, आई बी लाइक दिस, you know, मतलब आई एम काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज हैव स्माइल ऑन देयर फेस, बट आई हैव बीन ट्रोल्ड इन सारी बातों पे कि तुम्हारे मुंह पे कितने तिल है तुम्हारे मतलब, और आप जब आप खुद ये चीज एक्सपीरियंस करते हो ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती Yeah, है। I would like to say something, Amara. First, कि you have a beautiful smile. Never stop smiling. Second बात मुझे ये कहनी थी कि मैंने I don't know how many of you have heard about Solomon community, Solomon Island. What they used to do was वो tribal थे, natives tribal नहीं होते हैं। उनके उस वक्त वो जब उनको कहीं सेटल होना होता था, बिकॉज इट वाज एन आइलैंड, इट वाज देयर ट्रीज ऑल ओवर, तो वो दरख्त काटते नहीं थे, वो सारे उस दरख्त के इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे और उसको अब्यूज करते थे, उसको बुरा भला कहते थे, एंड विद इन अ वीक वो ट्री खुद गिर जाता था। So this is the impact of emotional abuse. This is the impact of verbal abuse. हम समझते हैं मार अल्लाह का शुक्र, मैं तो अपने बच्चे को कभी हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, गाली जरूर दी रोज, जरूर उसको याद दिलाया कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो दिखने में अच्छा नहीं है, वो दिखने में अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं कर रही है, वो जिंदगी में कभी एक अच्छा हस्बैंड नहीं ढूंढ पाएगी, या उसको कभी कोई अच्छी लड़की नहीं देगा कोई बाप, क्योंकि वो यूं नहीं है, यूं कभी मारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ये नहीं कर सकती। इससे अच्छा था आप मार देते एक चमाट और बात वहीं खत्म कर देते, क्योंकि बिल्कुल इमोशनल और वर्बल अब्यूज बच्चे के साथ रहता है और वो बड़े होने तक रहता है। मेरी हाइट, मेरा वेट कहीं ना कहीं अभी भी मुझे हिट कर देता है कि ओ शिट, आई हैव टू टॉक टू इन फ्रंट ऑफ पीपल, व्हाट इफ दे आर लुकिंग एट हाउ लॉन्ग, और व्हाट दे आर लुकिंग, यू नो, इस तरीके की चीजें हिट होती हैं। बट हर कोई अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर तो नहीं आता ना। बिल्कुल ट्रू दैट। खैर आई थिंक आज हमारा माशाल्लाह कॉन्वर्सेशन इतना अच्छा हो रहा है, वी डोंट रियलाइज कि हम कितने सारे टॉपिक को जो है वो क्योंकि कवर। दिस इज समथिंग ना हमारा कि आई कांट इवन एक्सप्लेन, मैं इस बारे में कितना बात करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि ये तो हमें पता है, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है आपको। बिल्कुल। और तुबा अभी जो आपने बात की थी उसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक ये भी बहुत होता है कि अगर माँ और बाप का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो हमारे यहाँ वन ऑफ देम विल कीप रिमाइंडिंग द चिल्ड्रन कि हम तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही रह रहे हैं साथ, सिर्फ तुम लोगों की वजह से हैं, तुम लोग ना होते तो हम तो करते ही ना, यू नो, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप भले बच्चों की वजह से साथ रह रहे हो, लेकिन अगर आप बच्चे को बार बार बताते रहोगे तो यू विल पुट दैट चाइल्ड इनटू दैट गिल्ट ना। और एक जो होती है मैंने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, हमने कितना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इस तरह की जो चीज होती है। आई नो कि जब हम लोग थे, मतलब आज से 10 साल पहले व्हेन आई वाज 19, तो थिंग्स वर डिफरेंट, पेरेंटिंग वर डिफरेंट, बट थिंग्स हैव बीन चेंज इन दोस 10 years। आज से 10 साल पहले जब मैं 19 साल की थी तो मैं डिफरेंट तरीके से सोचती थी, लेकिन आज जो 19 साल की लड़की है वो डिफरेंट तरीके से सोचती है। अगर मैं सोचूं जब मैं 19 साल की थी और मैं अगर सिगरेट पीती तो मुझे पता है मेरे भले मेरे अब्बा पीते या ना पीते तो मुझे दो चमाट मारते और मेरी हिम्मत ना होती, जरूरत ना होती। लेकिन अगर आज की 19 साल की लड़की सिगरेट पी रही है और आप उसको बोल रहे हो, और आप खुद भी सिगरेट पीते हो और आप उसको बोल रहे हो कि बेटा तुम सिगरेट मत पियो, नहीं आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो बच्ची पलट कर आएकर आपसे पूछेगी कि आप क्यों पी रहे हो। आपके डर से वो आपके सामने नहीं पिएगी, फिर वो पीछे से पिएगी, यू ये नो। जरूर पिएगी और आपसे झूठ बोलेगी। बिल्कुल। दीज आर दीज लिटिल थिंग्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो जो है हम लोगों को आई डोंट नो, वी हैव टू मेक श्योर कि इट्स। और अगेन हम लोगों का इस तरह से बात करना, इस तरह का सेशन करना, इट्स नॉट लाइक कि हम कुछ सिखाएं, जैसे कि हम वी आर जस्ट रिवाइजिंग दोज थिंग्स, ताकि जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी हमारी तरह एक अच्छा रिविजन हो, बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर इन द पाथ। लाइक लर्निंग हमारे लिए भी एक लर्निंग जर्नी है, जितना हम इस बारे में पढ़ेंगे, जितना हम इस बारे में बात करेंगे, उतनी ये चीजें, कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उतनी ये चीजें सबके अटेंशन में आएंगी, हमारी इंटेंशन में जो है ना अटेंशन में आएंगी। तो जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा हम आई थिंक जो अगेन हम वर्बल अब्यूज को या इमोशनल अब्यूज को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी 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 कॉमन हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो, क्योंकि मार कुटाई तो बहुत मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही होती है, लेकिन एक जो इमोशनल अब्यूज होता है या जो एक वर्बल अब्यूज होता है, दैट इज अ बिट ऑफ अ कांस्टेंट थिंग जो रहती है बच्चे के साथ, या जो हमारे यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होता है कि बच्चे को गालम गलोच दे दी या बच्चे को
कुछ ना कुछ बोल दिया कि भाई तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो जब से पैदा हुए हो तब से ही प्रॉब्लम है, ना तुम होते ना प्रॉब्लम्स होते। तो ये जो इस तरह की चीजें होती है ना, दीज आर द थिंग्स वी रियली नीड टू वर्क ऑन। जिस तरह बच्चों को बोल देना कि ये तो है ही बोंगा, ये तो इतना बोंगा है, इसको तो पता ही नहीं है चीजों का, मेरा बेटा तो बिल्कुल पागल है, इसको तो पता ही नहीं है। तो द मोर यू विल से इट, द मोर द चाइल्ड विल बिलीव कि हाँ भाई शायद मैं पागल ही हूँ, शायद मैं बोंगा। ठीक है, अगर एक मेरी ही गलती होगी, मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल, अगर एक बच्चा 8 साल का या 9 साल का और आप कॉन्स्टेंटली बोल रहे हो उसके सामने कि इतना बोंगा है, ये इतना बोंगा है, इतना पागल सा है, बेटा तुम्हें समझ नहीं आती है, तो इट मीन्स कि आप बच्चे को यकीन दिला रहे हो कि वो बोंगा है या वो पागल है। ठीक है, या आप अगर अपने बच्चे को बोल रही हो कि ये ना इतनी मोटी है ना, ये बिल्कुल अपनी खाला पे गई है, बिल्कुल पुप्पियों पे गई है, इस तरह की चीजें, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। या बच्चे को इवन बार बार बोलना है, ये इतना खाती है, ये इतना खाता है, वो खाती रहती है, खाता रहता है, तो देन चाइल्ड विल फील कि अच्छा मे बी जो मैं खा रही हूँ दैट इज नॉट नॉर्मल, मतलब मे बी मैं वो ज्यादा खा रही हूँ, मे बी देयर समथिंग रॉन्ग विद मी। क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगेन, वो उनका इतना एक्सपोजर नहीं, उनका इतना नॉलेज नहीं है, वो वही चीजें सीखेंगे, वो वही चीजें मानेंगे जो आप उन्हें सिखाएंगी, जो आप बोलेंगी वो उस पर यकीन करेंगे। एंड दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सारी चीजों को जो है, इन सारी चीजों पे फोकस करें, इन सारी चीजों को। हमारी हमारी ये डायलॉग इनिशिएट करने का मकसद ही यही है कि हम बिल्कुल लोगों को एटलीस्ट अगर कोई ये सोच लेना कि हाँ यार, लेट्स जस्ट लाइक फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू रीफ्रेज माय सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ माय चिल्ड्रन, वहीं पे आपकी छोटी छोटी कामयाबी से ही चेंज आता है। हमारा यहाँ पे हम थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, काफी एक्सटेंड हो गया है सेशन। सो end may would you like, क्योंकि and I'm quite sure would people would like to listen to you so much, so we can have another session about it, and I know इतना wide है कि इसके बारे में जितना बात करें कम है। तो हमारा in the end you just like to say something, so we'll just then finish the session. सही। अगर इसको एक खास चंद लफ्जों में कहा जाए तो मेरा यही यही पॉइंट है, यही यही मैं कहना चाहूंगी कि आप जो भी करें, जब आप एक पेरेंट हैं, इस बात को हमेशा जहन में रखें कि यू नीड टू बी देयर टू टू आपको वो बनना है कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट कर सके। यू नीड टू मेक दैट सिक्योर रिलेशनशिप एंड दैट इज द बेस। ठीक है, अगर आपका Yeah. आपके के साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप होगा, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा, तो देन एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी स्मूथ, एवरीथिंग विल बी ओके, द चाइल्ड विल बी फाइन विद यू। ठीक है, अगेन अगर अगर हम इवन ये अब्यूज वाली चीज को भी समराइज करें, तो मेक श्योर एंड ट्राई करें कि अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अब्यूज है वो तो नहीं रोक सकते ना, बट एटलीस्ट ट्राई करें कि आप खुद अपने बच्चे के लिए अब्यूजिव ना हो। दैट इज Yeah. ऑल। मतलब एक्सटर्नल दुनिया या एक्सटर्नल फैक्टर्स विल बी देयर, ठीक है, वो आप कंट्रोल Of नहीं कर। course. Of course. Being a parent, all you can control is to give your child that safe environment, free from Yeah. criticism, free from negative comments, free from discouragement. ठीक है, have and it's not, it does not mean कि भाई आपकी again कि भाई बच्चे का जो चाहेगा वो करेगा, नहीं। It means कि you set boundaries. It means कि you have your do's and don'ts very clear. It means कि आपके बच्चे को पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है, and you can only do those things by doing those things yourself. आप खुद एक अच्छा environment क्रिएट करें। अगर आप हर मियाँ बीवी के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ आप में और आपके शौहर के बीच में डिफरेंसेस हैं, तो इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट और प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन और बच्चों की सिंपैथी लेने के बजाय, या बच्चों को ये करने के बजाय कि मैं सही हूं या बाबा सही है या ये है या वो है, आपके बाबा अच्छे नहीं है या आपके मामा अच्छे नहीं है, जो भी आपके डिफरेंसेस है वो अपने बच्चों पे इफेक्ट होने ना दें। आई नो इट्स नॉट इजी बट इट इज डूएबल। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा टैंट्रम कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप वो सारी चीजें उसके सामने ना करें। और ऑलवेज ऑलवेज पुट कॉन्सिक्वेंसेज इन प्लेस, have straight boundaries, have your do's and don'ts, and have the set the consequences, but keep that thing in mind कि make sure कि you're not abusive towards your child। जो भी आप करें आप उसको एक्सप्लेन करें, गिव योर चिल्ड्रन रीजनिंग, एंड नेवर एवर एवर बीइंग अ पेरेंट फाइंड शॉर्टकट्स। ठीक है, मतलब ये हमारे यहाँ बहुत सारी, मतलब ये जो फिजिकल अब्यूज है उसका मेन रीजन तो शॉर्टकट ही होता है ना, ये वर्बल या इमोशनल अब्यूज इट्स अ शॉर्टकट।
पेरेंट्स के लिए अपना या तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का शॉर्टकट है, या फिर बच्चे को जो है जो भी आप करवाना चाह रहे हो वो करवाने का शॉर्टकट है। तो नेवर एवर थिंक कि ये जो शॉर्टकट्स हैं दे विल हेल्प। ठीक है, अगेन एज यू सेड इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, जितना हम इस बारे में बात करेंगे उतनी बात से बात निकलेगी। आई थिंक वी कैन जस्ट कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट इट फॉर लाइक डेज। तो या आई थिंक आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट। Thank you so much, Amara, for such a detailed session. And I think तुमने बहुत अच्छे से unfold किए हैं सारे topics and how what is abuse की तरीके क्या हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ एक sexually abuse है, बाकी कुछ abuse नहीं है। मगर I hope के parents realize करें कि उनकी बातों से, उनके actions से, the way they are behaving in front of the children कितना impact होता है बच्चे पे negatively. So thank you so much, Amara. Thank you so much, Tuba, for actually starting this whole platform जहाँ पर हम अपने knowledge को share कर सकें. It's a very big thing. Hats off to you for all the hard work. Thank you so much for supporting this initiative. That is what we need, support. It's a pleasure. It's a pleasure. It's an honor, actually. It's an honor for me, honestly. But thank you. And I'm really looking forward towards all the sessions we have put in place. And hopefully, ये सारा जो initiative है, it will help people to understand what we are trying to say. Definitely. Inshallah. Definitely. Okay. Thank you, Amara. Thank you. Thank you. So guys, thank you so much for joining. काफी लंबा session हो गया, but I'm quite sure you know कि how it's sensitive, how much needed talk this was, and if you want कि हमारा के साथ हम reschedule करें, हम जरूर कर लेंगे. Next session जो है वो मेरा होगा with the lawyer, in which we are going to talk about the the law and the government इसमें क्या role play कर रही है, और how secure our children are. It's very difficult, लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे और हम दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे, हम भी उतना ही उस गुनाह का हिस्सा है जितना जो कर रहा है. We need to talk about it. We need to do something about it. मेरा ये सपना है कि सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलें, घर के अंदर हों, अपने आप को इमोशनली, फिजिकली उतना ही सेफ फील करें जैसे कि they are at home, even if they are outside. That is my dream. और मेरे ख्याल से सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं. और इस सोच ने मेरी तो नींद उड़ा दी है कि इतना अब्यूज, इमोशनल, वर्बल बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देता है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम खत्म कर देता है, और फिर हम सोचते हैं वो बच्चे में काबिलियत नहीं है. बच्चे में बहुत काबिलियत होती है. आई थिंक कि ये सिर्फ हम जिस तरीके से उसको मोल्ड कर रहे होते हैं, कम से कम हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को इतना सेफ फील कराएं, इतना इमोशनली सिक्योर फील कराएं कि जब वो बाहर निकलें, they exactly know who they are, they exactly know what they can do, they exactly know what they cannot do and what is feasible. So they are stronger emotionally, physically, and they know how to face the world. I think that is what the target is. अगर हम उनको घर में ही इतना इधर पैम्पर कर रहे हैं या इतना निग्लेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी काबिल नहीं रह रहे, तो फिर उनमें उनका कसूर नहीं है. हमने समझना है कि कैसे लेके चलना है. So on that note, I'll stop this session now, and inshallah Monday at 6 p.m. I'll have a session with the advocate, so we can talk about how government and what are the laws that support our children with abuse. So thank you so much for joining in, and thank you so much for supporting this. The more you like it, the more you spread the word, the more it means you know how important it is. So take care. Allah Hafiz.